Hello, welcome you all. This is ninth lecture of BMC and today we'll discuss about the properties of concrete and in previous lecture we have discussed up to properties में जो हमने discuss किया है that is workability and today we'll discuss about the next property of concrete that is strength. And strength is very important property which is a main factor for which concrete is designed and strength is calculated normally after 28 days. So it is a property after hardening of concrete. So this is the property after hardening of concrete. It is not the property of fresh concrete, but it is the property of after hardening of the concrete. And strength is the sole criteria for which concrete is designed and for which concrete is used. Means इसी के बेसिस पे ही हम उसको डिजाइन करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ही concrete अलग अलग जगहों पे यूज होता है. और concrete की जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें भी उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही हम उसको मोस्टली क्लासिफाई करते हैं कि ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है या ये नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट है. जो भी क्लासिफिकेशन भी हम करते हैं दैट मेनली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. सो इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्ट्रेंथ. अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्ट्रेंथ. सो स्ट्रेंथ के बारे में अगर डिस्कस करें तो इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग. इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग. जो स्ट्रेंथ है दैट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग. अब ये मैं किसी पर्टिकुलर टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए नहीं बोल रहा हूं. इट इज जनरल. इन जनरल व्हाट इज स्ट्रेंथ आप लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन. अगर मैं जनरल बात करता हूं स्ट्रेंथ ऑफ किसी मटेरियल की तो दैट इज स्ट्रेंथ इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग. वो कोई सडन या इंपैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं. अगर हम सडन लोडिंग के अगेंस्ट या इंपैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट कहते हैं तो उसको टफनेस कहते हैं. सो दैट इज डिफरेंट टर्म. जो स्ट्रेंथ टर्म नॉर्मली यूज होता है, ये जो स्ट्रेंथ वर्ड हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं दैट इज फॉर ग्रेजुअल लोडिंग. सो इट इज द रेजिस्टेंस और you can say the internal opposition which is given by the any material against any gradual loading, that is called as strength. Here I will discuss first of all what are the factors which affect the strength of concrete. So we'll see here factors affecting the strength of concrete. ये हम लोग देखेंगे कि what are the factors which will affect the strength of concrete. So what are the factors? First factor you can see here. अगर हम लोग basic से start करें, so first one is quality of cement. So quality of cement, because cement is a binder and its quality is very important as far as strength is concerned, because as the concrete will have better binding property of cement, then it will have better cohesion between the particle and obviously it will modify the strength so that particle will not move away from each other and it will give better strength. So quality of cement is one of the major criteria. Second one is, although quality of all the ingredients is important, but still उसमें भी सबसे ज्यादा जो important है that is quality of cement. Next one is quality of aggregate. Type of aggregate. Yes, it is also very important. Like aggregate हमारा किस टाइप का है, राउंडेड है, एंगुलर है, फ्लैकी है, इलोंगेटेड है, वॉट एवर टाइप इज देयर एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट एग्रीगेट. वो किस स्टोन का बना हुआ है. लाइक अगर क्वालिटी ऑफ स्टोन बहुत पुअर है देन एग्रीगेट ही बहुत पुअर होगा, देन ऑब्वियसली इट विल नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू बियर मोर लोड. सो दैट क्वालिटी और टाइप ऑफ एग्रीगेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. Next important factor is water cement ratio. As we all know, there is a Abraham's law. Abraham's law clearly states that a water cement ratio is inversely related to the strength of concrete. तो ये इसके साथ इनवर्सली रिलेटेड है. अगर ये स्ट्रेंथ है और ये वाटर सीमेंट रेशियो है तो आप देख सकते हैं एज द वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. सो दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज देयर, दैट इज वाटर सीमेंट रेशियो. नेक्स्ट वन इज मिक्स प्रोपोर्शन. Obviously mix proportion significantly affect the strength. Obviously जैसा हम लोग मिक्स रखेंगे, जैसे अगर हम लोग 1:3:6 रखते हैं, 1:2:4 रखते हैं या फिर 1:1.5:3 रखते हैं तो आपको पता है ये M10 है, ये M15 है और ये क्या है M20 है. तो as we are moving in this direction strength is increasing like this. So
यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि मिक्स प्रोपोर्शन जैसा हम रखेंगे स्ट्रेंथ उसी हिसाब से हमारा आएगा। तो स्ट्रेंथ को वेरी कराने में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है, मिक्स प्रोपोर्शन का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जैसे कि वाटर सीमेंट रेशियो, और ये मिक्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जो हम लोग और देखते हैं दैट इज मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट। हम लोग जितना बेटर कॉम्पैक्शन करेंगे उतनी ही अच्छी स्ट्रेंथ हमें मिलेगी। आपको याद होगा मैंने बोला कि 5 to 10% ऑफ एयर वॉइड्स इन द कॉम्पैक्शन कैन रिड्यूस द स्ट्रेंथ बाय 30 to 60%, दैट इज ह्यूज रिडक्शन। सो 5 से 10% भी 30 से 60% तक का रिडक्शन कर सकते हैं, दैट इज ह्यूज रिडक्शन। इसी वजह से कॉम्पैक्शन शुड बी देयर, और कॉम्पैक्शन जितना अच्छा होगा देयर विल बी बेटर स्ट्रेंथ, उतनी ही अच्छी स्ट्रेंथ आपको वहां पे मिलेगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और है दैट इज क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट। Curing of concrete is also very important factor because curing also affect the strength of concrete significantly। क्योंकि curing जितनी अच्छी होगी उतना ही proper hydration होगा, और अगर hydration properly complete होगा then only the concrete will have better strength। Otherwise दूसरे केस में क्या होगा, if hydration is incomplete then you will not get better strength, उसमें आपको better strength नहीं मिलेगी। So this is the case कि concrete should have better compaction as well as better curing of concrete। Next important factor is admixtures। Yes, admixtures also helps in improving the strength of the concrete। Like if you use the admixture, either chemical admixture or mineral admixture, they will obviously help in increasing the strength or decreasing the strength। जो भी हम चाहते हैं admixture will help in that। So that is the admixture। इसके अलावा क्या फैक्टर है, जैसे हम लोगों की बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग का है हमारा, जैसे हम उसको बोलते हैं कि स्किल्ड लेबर, जैसे हमारे पास स्किल्ड लेबर है तो वो बेटर कंक्रीट बनाएगा, दैट इज वर्कमैनशिप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कमैनशिप। तो वर्कमैनशिप कैसा है, अगर स्किल्ड लेबर है या वर्कमैनशिप है देन ही विल मेक ऑब्वियसली बेटर कंक्रीट। और अगर कोई नया आदमी है जिसको आइडिया नहीं है, ही इज नॉट एक्सपर्ट, देन ही विल डेफिनेटली नॉट एबल टू मेक अ गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्किल्ड लेबर और वर्कमैनशिप, इट ऑल्सो डिपेंड्स on these factors। There are other factors like surrounding conditions like surrounding temperature, like this। So surrounding conditions like temperature etc। तो जो आसपास का एरिया का जो टेम्परेचर है that will also affect the concrete। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या टेम्परेचर है, क्योरिंग के टाइम पे क्या टेम्परेचर है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर अफेक्ट द मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, ऑब्वियसली हियर आल्सो टेम्परेचर अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। की सराउंडिंग में कंडीशन क्या है, ठीक है, दैट विल आल्सो अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड we have discussed some of them, and these are some important factors which are significantly important for the strength of concrete। Now how strength of concrete is measured, ठीक है। so next हम लोग डिस्कस करते हैं measurement of strength। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, ये हमारी हेडिंग है। अच्छा, पिछले हेडिंग में ये जो भी लिखा हुआ है आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा सारे फैक्टर्स, और इनका रीजन आपको मैंने समझा दिया तो आप उसको अपने शब्दों में वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि क्वालिटी सीमेंट का कैसे इफेक्ट करता है, एग्रीगेट का कैसे इफेक्ट करता है, वाटर सीमेंट रेशियो कैसे इफेक्ट करता है, मिक्स प्रोपोर्शन कैसे इफेक्ट करता है, कॉम्पैक्शन, क्योरिंग, एडमिक्सचर लाइक दिस, ये कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। सो मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है इट इज डन एज पर IS 516। This is the IS code according to which measurement is done। ठीक है, इसमें इन्होंने पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। सो वी शुड रेफर दैट कोड ओनली। हमको किसी बुक या किसी भी मैनुअल से अच्छा है कि द प्रोसीजर मेंशन इन IS कोड इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर अस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू विच वी कैन क्लेम आवर आंसर्स इन केस ऑफ UPSC और इन केस ऑफ गेट। UPSC में अभी तक क्लेमिंग का ऑप्शन नहीं है, बट यस इन केस ऑफ गेट यू कैन क्लेम द आंसर। इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग देन यू कैन क्लेम एज पर IS कोड एंड डेफिनेटली विल गेट द मार्क्स, अगर IIT में या पेपर बनाने में कोई गलती है तो। ठीक है, सो व्हाट आर द क्राइटेरिया एंड हाउ वी विल मेजर द स्ट्रेंथ, विल डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट वन विल डिस्कस अबाउट द compressive strength of concrete। So first I will calculate the compressive strength of कंक्रीट, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सो कैसे मेजर करेंगे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, व्हाट आर द एपरेटस, नाउ आई विल डिस्कस। सो एपरेटस देखिए,
एपरेटस इसमें दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्यूबिकल स्पेसिमेन हो सकते हैं, क्यूबिकल स्पेसिमेन हो सकते हैं, और इसमें दो कैटेगरी हो सकती है। फर्स्ट वन इज 15 सेंटीमीटर क्यूब एंड सेकेंड वन इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। दो टाइप के क्यूब हो सकते हैं। वन इज 15 सेंटीमीटर क्यूब एंड वन इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। 15 सेंटीमीटर क्यूब लाइक दिस इज द क्यूब हैविंग all the dimension 15 centimeter. ठीक है, having all the dimension 15 centimeter, and here is the cube having all the dimensions, here is the cube having all the dimension that is 10 centimeter, that is 10 centimeter. Now this is widely used but it is optional. ये जो है that is optional, ये आपकी मर्जी पे होता है, आप यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। एंड इट कैन बी यूज्ड, कब ये ऑप्शन आएगा आपके पिक्चर में, इट कैन बी यूज्ड when aggregate size is less than 19 mm. So this is the criteria. ये ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर आपके एग्रीगेट का साइज बड़ा है तब वहां पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट। बट अगर एग्रीगेट साइज छोटा है, 19 mm से छोटा है, then you have one option that is 10 centimeter cube you can use for the manufacturing of concrete cube. ठीक है, यहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्यूबिकल स्पेसिमेन के बाद ये पहला क्यूबिकल स्पेसिमेन हो गया। दूसरा होता है सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन। तो सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन में हम लोग क्या बनाते हैं, सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन में हम लोग बनाते हैं सिलेंडर नॉर्मली। और ये जो सिलेंडर होता है इट विल बी लाइक दिस। ये 15 सेंटीमीटर डाया होता है और ये 30 सेंटीमीटर हाइट होती है। दिस इज 15 सेंटीमीटर डाया एंड 30 सेंटीमीटर हाइट। सो दिस इज द सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन विच इज यूज्ड, विच कैन बी यूज्ड। ओके, इसके अलावा एपरेटस में आपको क्या चाहिए, ये हो गए। तीसरा आपको एपरेटस में चाहिए कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, दैट इज कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ठीक है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। और आपको चाहिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में कंप्रेशन टेंशन सब कुछ हो जाता है और कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में सिर्फ कंप्रेशन होता है। तो सीटीएम और यूटीएम कोई भी चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दीज आर एपरेटस जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर द एपरेटस जो हम लोग यूज करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसकी पिक्चर दिखाऊं आपको, तो ये एपरेटस कैसे दिखते हैं ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको दिख सकता है ये कैसे दिखते हैं, आप सबने यूज किया होगा। तो ये देखिए, ये है आपका क्यूब। जो क्यूब आपका है ये 15 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 15 सेंटीमीटर क्यूब है। और इस क्यूब को ये आपका देखिए, इसको कहते क्या है, ये मशीन है। ये सीटीएम हो सकती है या ये यूटीएम हो सकती है, सीटीएम और यूटीएम। और इसको हम लोग इस क्यूब को इसमें फिक्स करते हैं। और यहाँ पे आपका ये जो प्लेट्स हैं, ये स्टील की प्लेट्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्टील प्लेटेंस। ये स्टील की प्लेटेंस हैं, इसलिए इनको हम लोग स्टील प्लेटेंस कहते हैं। दीज आर दीज स्टील प्लेटेंस। तो ये क्यूबिकल अरेंजमेंट हो गया। और इसी तरह से सिंपल आप देख सकते हैं, अगर आपको सिलेंडर का देखना है, सो यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व, ये है, ये आपके सामने मैंने सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन रख दिया। तो ये है आपका सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। अब सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन में भी देख सकते हैं, ये सीटीएम यूटीएम सेम ही है, दैट इज सेम। ये सीटीएम यूटीएम तो सेम ही है। यहाँ पे ये है सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, दिस इज सिलेंडर। तो ये आपको सेम ही दिख रहा है, सिलेंडर का स्पेसिमेन है यहाँ पे। ठीक है, बट ये लोडिंग तो अभी भी सीटीएम या यूटीएम से ही है। सीटीएम और यूटीएम, वहां से आप लोडिंग करते हैं। और यहाँ पे भी इनको प्लेटेंस ही कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेटेंस। वो दोनों ही केस में ये प्लेटेंस ही है, ऑब्वियसली एक ही मशीन है, तो दीज आर प्लेटेंस। सो दीज आर प्लेटेंस, स्टील प्लेटेंस होती हैं। दीज आर स्टील प्लेटेंस जिसके थ्रू हम लोग लोड अप्लाई करते हैं। दीज आर स्टील प्लेटेंस जिसके थ्रू हम लोग लोड अप्लाई करते हैं। सो दीज आर स्टील प्लेटेंस, और इस तरह से लोडिंग लगाई जाती है। तो ये सिलेंडर हो गया, ये क्यूब हो गया, दोनों आपके सामने। यही इंस्ट्रूमेंट हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो एपरेटस में तो कोई परेशानी नहीं है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। आप देख सकते हैं, दो टाइप के स्पेसिमेन हो सकते हैं, दो टाइप के स्पेसिमेन। ये 15 सेंटीमीटर क्यूब है, ये सिलेंडर है, और इस तरह से इनको हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में फिक्स कर देते हैं। ये हम लोग पूरा ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अब इसमें ये एपरेटस हो गया। प्रोसीजर क्या होता है, देखिए, विल सी हियर प्रोसीजर। सो प्रोसीजर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेश कॉन्क्रीट, ये लिखते चलेंगे आप। फ्रेश कॉन्क्रीट इज फिल्ड inside the molds
in following manner. In following manner. अब कैसे फिल होता है ये आपको मैं दिखाता हूं। वो जब हम फ्रेश कंक्रीट को उसमें फिल करते हैं तो कैसे फिल करते हैं, तो देखिए यहां पे। अब अगर आपका 15 सेंटीमीटर क्यूब है तो कैसे फिल करेंगे, और अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो कैसे फिल करेंगे, ये देखिएगा। तो देखिए 15 सेंटीमीटर के क्यूब में लेयर ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्रिपेयर्ड एट अ टाइम। तो एक बार में 5 सेंटीमीटर की लेयर बनती है। जैसे ये टोटल क्यूब है आपका 15 सेंटीमीटर का, तो बताइए 5 सेंटीमीटर की कितनी लेयर बनेंगी, 1 2 and 3। सो 3 लेयर्स विल बी देयर, 1 2 3, और हर लेयर का रहेगा 5 सेंटीमीटर लाइक दिस। सो दिस इज द लेयर्स, ठीक है। एंड दूसरा इसमें कॉम्पैक्शन ऑफ ईच लेयर is done for 35 times। तो हर लेयर का हम कॉम्पैक्शन करेंगे यहां पे। कॉम्पैक्शन ऑफ ईच लेयर इज डन फॉर 35 टाइम्स यूजिंग टैंपिंग रॉड। तो अगर हम टैंपिंग रॉड से कर रहे हैं, सो वी हैव टू डू इट यूजिंग टैंपिंग रॉड। और कितना देर करेंगे, 35 टाइम्स विल डू द कॉम्पैक्शन, ठीक है। अगर आप 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो क्या होगा, यहां पे भी लेयर कितने की होंगी, लेयर ऑफ 5 सेंटीमीटर। यहां पे भी लेयर 5 सेंटीमीटर की ही होंगी, लेयर विल बी ऑफ 5 सेंटीमीटर ओनली। बट होगा क्या यहाँ पे, देयर विल बी 2 लेयर्स ओनली, क्योंकि 5 की हैं तो 2 लेयर्स हो जाएंगी, 2 लेयर्स ही हो जाएंगी, 2 लेयर्स हो जाएंगी। एंड कॉम्पैक्शन ऑफ, यहाँ पे 2 लेयर्स हो जाएंगी, और कॉम्पैक्शन दोनों लेयर का क्या होगा, यहाँ पे कॉम्पैक्शन दोनों लेयर का क्या होगा, कॉम्पैक्शन ऑफ ईच लेयर is done for 25 times, ठीक है। So compaction of each layer is done for 25 times. Here compaction is done for 35 times and here compaction is done for 25 times. So compaction of each layer is done for 25 times here and 35 times here. इस तरह से हमने कंक्रीट को फिल कर दिया मोल्ड के अंदर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, आफ्टर placing molds are placed at room temperature। यहां पे आफ्टर फिलिंग लिख सकते हैं आप। आफ्टर फिलिंग, जब हमने कंक्रीट फिल कर दिया, आफ्टर फिलिंग molds are placed at room temperature for 24 hours। 24 घंटे के लिए हम लोग इनको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं। 24 आवर्स के लिए हम इनको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर 24 आवर्स 24 घंटे बाद क्या होता है, आफ्टर 24 आवर्स डीमोल्डिंग इज डन। आफ्टर 24 आवर्स डीमोल्डिंग इज डन एंड concrete cubes are placed in curing tank। तो 24 घंटे बाद डीमोल्डिंग की जाती है। आफ्टर 24 आवर्स डीमोल्डिंग इज डन एंड कंक्रीट क्यूब्स आर प्लेस्ड इन क्योरिंग टैंक। हम लोग कंक्रीट क्यूब्स को प्लेस कर देते हैं क्योरिंग टैंक के अंदर। सो आफ्टर 24 आवर्स डीमोल्डिंग इज डन एंड कंक्रीट क्यूब्स आर प्लेस्ड इन क्योरिंग टैंक। हम लोग क्योरिंग टैंक के अंदर उनको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। देन आफ्टर sufficient days of curing, जनरली कितने दिन बाद, 28 डेज बाद। जनरली आफ्टर 28 days, after sufficient days of curing, generally 28 days, concrete cubes are taken out and during the curing के दौरान, during the curing, the temperature should be in the range of 27 plus minus 2 degrees Celsius. During curing, temperature should be in the range of 27 plus minus
2 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, and humidity should be at least humidity जो होना चाहिए that should be at least 90%. So this is the criteria. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है कि क्योरिंग के ड्यूरेशन में कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए. सो टेम्परेचर शुड बी 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी शुड बी 90%. एटलीस्ट 90% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए. ठीक है, तो अब हमने क्यूब को बाहर निकाल लिया. ठीक है, देन क्यूब इज सरफेस ड्राइड before placing it into CTM और UTM. ठीक है, तो CTM या UTM में प्लेस करने से पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, सरफेस ड्राई करते हैं, उसको सरफेस ड्राई कर देते हैं. ठीक है, इंटरनल पोर्शन ड्राई नहीं होगा बट सरफेस पे वो ड्राई हो जाएगा. ठीक है, देन स्पेसिमेंस आर placed in CTM or UTM and gradual compressive load is applied at the rate of 14 Newton per mm square per minute. Gradual compressive load is applied at the rate of 14 Newton पर mm स्क्वायर पर मिनट. इस रेट से इसके ऊपर ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड अप्लाई होता है. ठीक है, अप टू द फेलियर. तो जब तक फेलियर नहीं होता है विल कीप ऑन अप्लाइंग द लोड विद द इंक्रीजिंग रेट ऑफ 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट अप टू द फेलियर. एंड फाइनली द लोड corresponding to फेलियर. अब फेलियर के करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा, द लोड करस्पॉन्डिंग टू फेलियर इज नोटेड डाउन. ठीक है, सो यू विल गेट हियर. ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर. देन व्हाट इज द रिजल्ट? यहां पे रिजल्ट हमें क्या मिलता है, देखिए रिजल्ट में क्या मिलता है. रिजल्ट में हमें मिलेगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. अगर हम लोग क्यूब टेस्ट कर रहे हैं तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब. ठीक है, तो क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, दैट विल बी मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया. और इसका यूनिट क्या होता है नॉर्मली, MPa. ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट. विल कैलकुलेट द मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया. दिस विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, दैट इज मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया. नाउ अब हम लोगों को चाहिए इसी रिजल्ट में आगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. हमने अभी तक क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला है, एक क्यूब का निकाला है. सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, देखिए दोनों में अंतर है. जो क्यूब की स्ट्रेंथ आ जाती है उसी को हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं बोल देते. हर क्यूब की स्ट्रेंथ को कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं बोलते. कोडल प्रोविजन क्या है देखिए. अब आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बतानी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब आपको आ चुकी है. सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल बी दिस विल बी एवरेज ऑफ strength of at least 3 cubes. This will be average of strength of at least 3 cubes. कम से कम 3 क्यूब्स की जो स्ट्रेंथ है उसका ये एवरेज होगा. दिस विल बी एवरेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 3 क्यूब्स. ये कम से कम 3 क्यूब्स की स्ट्रेंथ का एवरेज होगा. दिस विल बी एवरेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 3 क्यूब्स. ये ध्यान में रखना है. दिस विल बी एवरेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 3 क्यूब्स. ठीक है, दिस विल बी एवरेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 3 क्यूब्स प्रोवाइडेड, यहां पे कंडीशन है प्रोवाइडेड द वेरिएशन इन strength of any single cube should not be more than 15%. should not be more than 15%. इसका मतलब क्या है 15% from the mean. मतलब क्या समझे आप,
मतलब क्या समझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे हमने 3 क्यूब, एटलीस्ट 3 क्यूब हमने टेस्ट किया, और 3 क्यूब में एक की स्ट्रेंथ आ गई 23, एक की आ गई 26, एक की आ गई 28, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेंथ आ गई। सो व्हाट इज द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, आप कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इक्वल टू, आप इसको क्या करेंगे 23 प्लस 26 प्लस 28/3, दिस इज द एवरेज। तो आप कैलकुलेट कर लें, देखिए 23 प्लस 26 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 3, this is 25.66, this is 25.66 MPa, so this is 25.66 MPa is the strength। अब ये जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ आप ये चेक करेंगे, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि कहीं इससे 15% से ज्यादा वेरी तो नहीं कर रही है। जैसे 25.66 से 15%, इसका 15% कितना होगा, मीन ये है तो इसका 15% है, दैट इज अराउंड 3.85। तो ये जो इंडिविजुअली चेक करेंगे कि ये इससे 3.85 से कम तो नहीं है, तो नहीं है कम, क्योंकि ये तो इससे 2.66 ही कम है, तो 3.1 के रेंज में है, ये भी इसके 2 के ही आसपास है, ये भी इससे 3.85 से कम है, तो ये एक्सेप्टेबल है, दिस इज एक्सेप्टेबल। मतलब ये एक्सेप्टेबल कब होगा, फिर से समझिए इस बात को, हमारे पास 3 सैंपल से, तीनों का हमने एवरेज निकाला, उसके बाद हमने चेक कर लिया कि ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, ये इंडिविजुअल वैल्यूज हैं जो ये कहीं इससे इसके 15% से ज्यादा से वैरी तो नहीं कर रहे हैं, तो इसका 15%, इसका 15%, इसका 15% आएगा 3.85। तो ये जो वेरिएशन है, जैसे ये 25.66 और 28 का, इट इज अराउंड 2.33 समथिंग, उस ये 3.85 से कम होना चाहिए, इट इज अराउंड 2.44, ये भी 3.85 से कम होना चाहिए, और ये जो है 2.66 ये भी 3.85 से कम होना चाहिए, देन इट इज एक्सेप्टेबल। सो मिनिमम सैंपल शुड बी 3, मिनिमम क्यूब शुड बी 3, एंड द वेरिएशन शुड बी विद इन द 15%, वो वेरिएशन जो इंडिविजुअल का वेरिएशन है विद इन द 15%, देन वी कैन टेक द एवरेज, एंड दैट एवरेज विल बी द strength of the concrete. This is the simple criteria for the concrete strength of the concrete. There is a acceptable criteria also that is given in IS 456 कि when will accept the concrete as a whole, तो उसके लिए acceptance criteria is there, and you will study this acceptance criteria in detail in RCC subject. So I will not going to discuss the acceptance criteria, but yes, individual test का strength हम इस तरह से निकालेंगे, and then you can check the acceptance criteria also that you will study in RCC subject in detail. Okay, now so I have discussed so far the procedure, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है, ये कौन सी स्ट्रेंथ होती है, ये नॉर्मली जो स्ट्रेंथ हमने नॉर्मली जैसे M25 का कंक्रीट है तो 25 MPa की जो स्ट्रेंथ है, तो दैट इज द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ लिखी होती है, M फॉर मिक्स है और ये स्ट्रेंथ है, तो दैट इज द स्ट्रेंथ, जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है, दैट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ, जो इस कंक्रीट को हम बनाएंगे तो इतनी आनी चाहिए, ये इसकी स्ट्रेंथ होती है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देखिए, जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक केस डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज वेरी सिंपल केस। चलो पहले मैं कुछ समझाने से पहले मैं पहले ये केस डिस्कस करना चाहता हूँ। सो ये केस क्या है, समझिएगा ध्यान से। दिस इज द केस कि मान लीजिए आपके पास एक कंक्रीट का सैंपल है, यू हैव अ कंक्रीट सैंपल और 10 मीटर क्यूब कंक्रीट है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 मीटर क्यूब टोटल कंक्रीट है, ठीक है, और आप इस 10 मीटर क्यूब कंक्रीट की से कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं, कहीं पे भी कोई कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, आपके पास टोटल 10 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। जब आप इस 10 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट को यूज करने जा रहे थे तो आपके मन में आया कि चलो हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, ये पता कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। आपने कुछ डिजाइन किया होगा और आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ आई है, ये आप चेक करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे ठीक है सर चेक कर लेंगे हम। अब चेक करने के लिए आपके मन में आया कि चलो ऐसा करते हैं ना, इसको अलग अलग मेथड से चेक करते हैं। तो लोगों के मन में आया कि एक मन में आया किसी के कि चलो क्यूबिकल स्पेसिमेन के साथ चेक करते हैं, क्यूबिकल स्पेसिमेन से चेक करते हैं, और दूसरे के मन में आया कि सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन से चेक करते हैं, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन से चेक करने के एक के मन में आया और दूसरे के मन में आया कि क्यूबिकल स्पेसिमेन से चेक करते हैं। मैंने बोला ठीक है आप दोनों से चेक करो। तो जब दोनों से चेक किया गया तो कैसे चेक करेंगे, 3 क्यूब बनाए होंगे और 3 क्यूब का एवरेज लिया होगा, तो यहाँ पे आपको एवरेज ऑफ 3 क्यूब यहाँ पे लिए होंगे, एवरेज ऑफ 3 क्यूब, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट बोले होंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या किया होगा, एवरेज ऑफ 3 सिलिंडर्स, यहाँ पे एवरेज ऑफ 3 सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ जो भी आई होगी, सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ जो भी आई होगी उसको हमने बोला होगा स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ये बोल दिया होगा, सिंपल सी बात है। अब जब हमने इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया तो देखो यहाँ पे
सेम कंक्रीट वही है, मेथड हमने बस बदला है, लेकिन कंडीशन सारी सेम है। कंक्रीट वही है, जो ड्यूरेशन ऑफ टेस्टिंग है वही है, जो कंडीशन ऑफ टेस्टिंग है हमने एक ही जैसा मेंटेन कर रखा है, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो भी एक ही जैसा मेंटेन कर रखा है, सब कुछ यहाँ पे एक जैसा ही मेंटेन किया हुआ है। बस चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पे सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है और यहाँ पे क्यूबिकल स्पेसिमेन है। अब देखो कायदे से क्या होना चाहिए, अगर हम लोग रूल की बात करें तो जैसे एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चाहे हम इस मेथड से सॉल्व करें चाहे उस मेथड से सॉल्व करें, हमारा आंसर सेम आना चाहिए। व्हाट इज द बेसिक थ्योरी कि अगर हम इसको इस मेथड से करें चाहे उस मेथड से करें, हमारा जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी सेम। वो मेथड पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, दैट शुड बी करेक्ट होना चाहिए वो, और वो सेम होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज द रूल। आप ये सब समझते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं, यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द मेथड, फाइनली यू आर थिंकिंग कि हमें करेक्ट आंसर मिलना चाहिए, दैट इज द आवर मेन एम। तो यहां पे भी हमारा एम यही है कि हमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, करेक्ट मिलनी चाहिए, चाहे वो मेथड क्यूबिकल हो चाहे वो मेथड सिलिंड्रिकल मेथड हो। लेकिन अब यहां जो हमें मिला वो यहां पे कुछ ऐसा मिला कि हम कंफ्यूज हो गए कि क्यूब की जो स्ट्रेंथ आई, दैट स्ट्रेंथ, मान लीजिए ये स्ट्रेंथ x है और यहां ये स्ट्रेंथ y है, सो x इज नॉट इक्वल टू y। हमें यहां पे क्या मिला, x नॉट इक्वल टू y। अब क्यूबिकल स्पेसिमेन से जो स्ट्रेंथ मिली वो कुछ और थी, और जो सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन से स्ट्रेंथ मिली वो कुछ और थी। और ये जो स्ट्रेंथ का वेरिएशन आया, इसको देख के हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आने शुरू हुए कि ये वेरिएशन क्यों आया, what is the reason behind these variation and how we can cater these variation। और अब हमें इनको समझने के लिए हमारे दिमाग में ये हलचल होने लगी कि how we can understand कि why these variations are occurring। तो हमें ये समझना है कि अब ये वेरिएशंस हो क्यों रहे हैं, ये हम लोगों को यहां पे डिस्कस करना है। सो विल डिस्कस कि ये वेरिएशन हो क्यों रहे हैं, हमें यही समझना है। तो अब देखिए यहां पे ध्यान से, अब इसमें जो आईएस कोड है उसमें मेंशन है इसका रीजन, और उसी को मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं। देयर आर सेवरल रीजन, ऐसा नहीं कि इसमें एक ही रीजन है, बट एक रीजन जो इसमें है दैट इज हाइट टू डाया रेशियो। हाइट टू डाया रेशियो यू कैन से हियर, हाइट टू डाया रेशियो जो है दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। और यहां पे इस रीजन, इसका हाइट टू डाया रेशियो का इफेक्ट है, दैट इज इफेक्ट ऑफ हाइट टू डाया रेशियो, और इसके इफेक्ट की वजह से ये वेरिएशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशंस क्यों आते हैं और हाइट टू डाया इफेक्ट, रेशियो इफेक्ट इसको कैसे वेरी कराता है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सेम कंक्रीट है तो स्ट्रेंथ दोनों की सेम आनी चाहिए, बट दोनों की स्ट्रेंथ सेम नहीं आती, एक की अलग आती है दूसरे की अलग आती है। और नॉर्मली यहां पे x ग्रेटर देन y मिलता है, जनरली ऐसा मिलता है हमें कि x इज ग्रेटर देन y, जनरली x इज ग्रेटर देन y। तो ऐसा क्यों होता है, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है हमें समझना है। ठीक है, इसमें से करेक्ट कौन है गलत कौन है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो देखिए होता क्या है, तो अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, याद करिए ये डायग्राम दिखाया था, तो ये आपको दिख रहा है, ये डायग्राम मैंने आपको मैं पहले आपको क्यूब का डायग्राम दिखाता हूं। दिस इज द क्यूबिकल डायग्राम, यहां पे आपको क्यूब दिख रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं, दिस इज द क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है, और इसी के बगल में आपको मैं सिलेंडर भी दिखाता हूं। ठीक है, इसके बगल में मैं आपको सिलेंडर भी दिखाता हूं। सो दिस इज द, ये सिलेंडर है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपके सामने दिखा दिया। अब देखिए इनका कंपैरिजन करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए ये क्यूब है और ये सिलेंडर है। अब इसमें जो लोडिंग लग रही है जरा उसको ध्यान से देखिएगा। जो इसमें लोडिंग लग रही है वो स्टील के प्लेटन से लग रही है। ये स्टील के प्लेटन्स हैं जो इधर से इसके ऊपर लोडिंग लगा रहे हैं, और ये इधर से लोडिंग इसके ऊपर लग रही है, कंप्रेशन लोडिंग। यहां पे भी सेम है, यहां से लोडिंग ऊपर से इस तरह से लोडिंग लग रही है। अब ये स्टील के प्लेटन्स हैं। ठीक है, ये क्या हैं, स्टील प्लेटन्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील के प्लेटन्स हैं। ठीक है, और यहां पे भी ये सेम है। अब जब इस पे लोडिंग लगती है तो आपको मैंने बताया है और आप ये जानते ही होंगे कि जब किसी भी चीज को हम कंप्रेस करेंगे, तो जैसे हम एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, ये डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन, मान लीजिए ये वाई डायरेक्शन है फॉर एग्जाम्पल, ये या फिर कोई भी डायरेक्शन इसको मान लीजिए, ये नॉर्थ साउथ है, या वाई मान लीजिए, ये वाई डायरेक्शन है, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज एक्स डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज एक्स डायरेक्शन। तो जब मैं कंप्रेशन लोडिंग वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, व्हेन आई एम अप्लाइंग compression loading in y direction, then in x direction also there will be induced tensile stress। अगर मैं कंप्रेशन y में लगा रहा हूं तो x में भी टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा। जब हम किसी चीज को ऐसे कंप्रेस करेंगे तो ये इधर फैलेगा, इधर कंप्रेस करेंगे इधर फैलेगा, इधर कंप्रेस करेंगे इधर फैलेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। ये पॉइजन्स इफेक्ट में भी आप लोग, पॉइजन्स रेशियो जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पे भी ये इफेक्ट आप डिस्कस करेंगे कि जब हम उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देंगे तो वो लेटरल स्ट्रेन में फैलेगा। तो यहां पे यही हो रहा है कि जब हम इसको कंप्रेसिव लोडिंग दे रहे हैं तो ये टेंसाइल डायरेक्शन में भी एक्सपेंशन इसमें
होगा। कंप्रेशन लोडिंग में ये टेंसाइल डायरेक्शन में एक्सपेंड होना चाहेगा। तो अब देखिए ये लोडिंग मैंने लगाई और ये टेंसाइल डायरेक्शन में भी यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो जब यहाँ टेंसाइल डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पे मूवमेंट होना शुरू होगा, लाइक दिस, ये मूवमेंट होना शुरू होगा। और जब मूवमेंट होगा तो इसको हम लोग कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल स्ट्रेन, क्योंकि लेटरल डायरेक्शन में भी ये मूव करना शुरू करेगा। और यहां पे जो लेटरल स्ट्रेन हो रही होगी उसमें दो रीजन होगा। एक लेटरल स्ट्रेन इसमें भी होगी, एक लेटरल स्ट्रेन स्टील की होगी और एक लेटरल स्ट्रेन कंक्रीट की होगी। तो ये लेटरल स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट है, ये लेटरल स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट है, और यहां पे जो है दैट इज लेटरल स्ट्रेन ऑफ स्टील। तो दोनों डायरेक्शन में लेटरल, दोनों मटेरियल में लेटरल स्ट्रेन होगी। एक स्टील की लेटरल स्ट्रेन होगी और एक कंक्रीट की लेटरल स्ट्रेन होगी, क्योंकि दोनों में कंप्रेशन लग रहा है। जब इसमें कंप्रेशन लग रहा है इसमें, तो स्टील में भी लेटरल स्ट्रेन आएगी, कंक्रीट में भी लेटरल स्ट्रेन आएगी, और दोनों में ही मूवमेंट यहाँ पे एक दूसरे के, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। और यहाँ पे एक मजे की बात देखिए कि जो लेटरल स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि वो कंक्रीट जो है वो कमजोर मटेरियल है, तो उसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा। तो लेटरल स्ट्रेन ऑफ जो स्टील हमें मिलता है, लेटरल स्ट्रेन ऑफ स्टील, दैट विल बी 0.4 टाइम्स लेटरल स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट हमें मिलता है। तो जो स्टील का लेटरल स्ट्रेन हमें मिलता है दैट इज 0.4 टाइम्स लेटरल स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट होता है। तो जो लेटरल स्ट्रेन ऑफ स्टील है दैट इज 0.4 टाइम्स लेटरल स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, वो कंक्रीट के लेटरल स्ट्रेन का 0.4 टाइम्स होता है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि स्टील का लेटरल स्ट्रेन कम होता है और कंक्रीट का लेटरल स्ट्रेन ज्यादा होता है। अब देखिए कंक्रीट तेजी से भागना चाह रहा है और स्टील उतना तेजी से नहीं भाग रहा है। ध्यान से समझिए, कंक्रीट तेजी से भागना चाह रहा है लेकिन स्टील उतना तेजी से नहीं भागना चाह रहा है। कंक्रीट तेजी से भागना चाह रहा है, तेजी से मूव करना चाह रहा है, स्टील उतना तेजी से मूव नहीं करना चाह रहा है। इसका मतलब दोनों में रिलेटिव मूवमेंट होगा, और अगर दोनों में रिलेटिव मूवमेंट होगा तो क्या फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा? ऑब्वियसली फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। सो हेंस बिटवीन, इसी के नीचे आपको ये लिखना है, बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील लेटरल मूवमेंट, relative movement, concrete and steel, relative movement will take place, relative movement होगा इनके बीच में, relative movement will take place, and that leads to friction between, relative movement will try to takes place, यहां पे relative movement will try to takes place that leads to friction, mobilization of friction, वो वहां पे क्या करेगा? फ्रिक्शन जनरेट कर देगा। that leads to mobilization of friction। अब लेटरल मूवमेंट होना चाह रहा है लेकिन वहां पे फ्रिक्शन मोबिलाइज हो जाएगा, मोबिलाइजेशन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अब क्या होगा? अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये मूव करना चाह रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, जैसे ही मूव करना चाहेंगे उनके बीच में क्या मोबिलाइज हो जाएगा? फ्रिक्शन मोबिलाइज हो जाएगा, फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा, एंड दैट फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज द मूवमेंट ऑफ कंक्रीट, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा कि अब ये जो फ्रिक्शन है, यहां पे जो दोनों के इंटरफेस पे ये जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ है, वो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में अब आपको कंक्रीट को इस डायरेक्शन में कंप्रेशन देगा। यू कैन सिंबॉलिकली ड्रॉ लाइक दिस, ये इस डायरेक्शन में कंक्रीट को कंप्रेशन देगा, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में कंक्रीट को कंप्रेशन देगा, इस डायरेक्शन में कंक्रीट को अब क्या मिलेगी? कंप्रेशन मिलेगी। फ्रिक्शन जो है उसको रोकेगा फैलने से। जब इधर से उसको कंफाइनमेंट मिलेगी, उसको इधर से कंप्रेशन मिलेगा इस डायरेक्शन से, लेटरल डायरेक्शन से जब उसको रिस्ट्रेनमेंट मिलेगा, जब रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट मिलेगा, तो अब ये कंक्रीट इजीली फैलेगा नहीं, और जब वो कंक्रीट इजीली एक्सपेंड नहीं होगा तो उसके फेलियर का चांस कम हो जाएगा। क्योंकि अब आप लोड इधर से लगा रहे हो तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया, ये इसको रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट मिल रहा है, तो जब इसको रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ये इजीली फेल नहीं होगा। जब इजीली फेल नहीं होगा तो ये जो लोड हैंडल करेगा, जितना लोड बियर करेगा इसको टूटने के लिए, जितना लोड चाहिए, दैट विल बी मोर देन द एक्चुअल लोड। इस रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट, ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, दैट इज रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट, ये आपका रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है। एंड ड्यू टू दिस रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट, इस रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट की वजह से, ये जो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट आपको दिख रहा है, ड्यू टू दिस रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या होगा? द लोड रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कंक्रीट विल बी मोर देन द एक्चुअल लोड। यहां पे यही चीज मिलती है हमें, तो इसको हम लोग रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट कहते हैं। सो ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शन, अब आप यहां पे देख सकते हैं,
ड्यू टू दैट फ्रिक्शन, अभी हम इसको यहां पे लिखेंगे, ड्यू टू दैट फ्रिक्शन between steel platens and concrete, restraining effect will come in picture, and this restraining effect will leads to higher load requirement for the failure of the specimen. तो यहां से हमें एक जो उसको ब्रेक करने के लिए लोड की रिक्वायरमेंट होगी, दैट विल बी मोर। और जब उसको ब्रेक करने के लिए लोड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो हम लोग जो रीडिंग लेते हैं, यहां पे जब हम लोडिंग लगाते हैं तो हमें ऊपर रीडिंग मिलती है, और जब हम रीडिंग यहां पे हमें ऊपर रीडिंग मिलती है, यहां पे हमें रीडिंग मिलती है, तो वो रीडिंग तो वही रीडिंग शो करेगी ना जो लोड उसको तोड़ने के लिए चाहिए होगा। तो यहां पे जो मैक्सिमम लोड हमें मिलेगा, हेंस द रीडिंग obtained will be corresponding to load required, ठीक है, and that is greater than actual load, hence the strength obtained will be more than actual strength। तो यहां पे यही हो रहा है, एक्चुअल स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। ये चीज आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रेंथ से यहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट की वजह से लोड ज्यादा बियर करेगा, लोड ज्यादा आएगा तो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में वैल्यू ज्यादा आएगी, और इसलिए हमें जो वैल्यू मिलेगी वो ज्यादा वैल्यू मिलेगी एज कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू। तो ये हमें यहां पे समझना है। इसीलिए IS कोड ने एक करेक्शन फैक्टर दिया। अच्छा, ये जो इफेक्ट होगा वो किसमें डोमिनेटिंग होगा? अब ये देखिए, ये इफेक्ट रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट विल बी डोमिनेटिंग। ये जो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है, रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट will be dominating in cubical specimen as compared to cylindrical specimen। तो किसकी स्ट्रेंथ में ज्यादा इसका इफेक्ट होगा? तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा इस इफेक्ट होगा क्यूबिकल स्पेसिमेन में। और अगर मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाऊं तो आप देखिएगा कि ये जो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है, इसका इफेक्ट किसमें ज्यादा है। आप देख सकते हैं ये डायग्राम ध्यान से देखिए, यहां पे आपको ये दिखेगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां पे जो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है, ये जो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है, दैट इज अफेक्टेड थ्रू आउट द हाइट। ये जो क्यूबिकल स्पेसिमेन है, दिस इज अ क्यूबिकल स्पेसिमेन, और ये अफेक्टेड है थ्रू आउट द हाइट। इट इज अफेक्टेड, स्पेसिमेन अफेक्टेड बाय लेटरल स्ट्रेसेस थ्रू आउट द हाइट। और यहां पे जो सिलेंडर है, दैट इज नॉट अफेक्टेड इन सेंट्रल पोर्शन, दैट इज नॉट अफेक्टेड, दिस इज नॉट अफेक्टेड जोन, अनअफेक्टेड जोन। तो यहां पे जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होता है वो अनअफेक्टेड होता है सेंट्रल पोर्शन में, बट दिस क्यूबिकल स्पेसिमेन इज अफेक्टेड थ्रू आउट। तो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन इज लेस अफेक्टेड, और ये जो स्पेसिमेन है दैट इज मोर अफेक्टेड। तो किसमें ज्यादा रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दैट रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट इज मोर इन केस ऑफ क्यूबिकल स्पेसिमेन एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। तो अब देखिए, सिलेंडर में होता क्या है कि ये लेस अफेक्टेड है, इसकी वजह से क्या होगा कि अब जब आप लोडिंग लगाएंगे तो फेलियर यहीं से हो जाएगा जहां पे वो अफेक्टेड जोन नहीं है, क्योंकि ये वीकर जोन है एक तरह से, और यहीं से फेलियर हो जाएगा। जब यहीं से फेलियर हो जाएगा तो सिलेंडर की स्ट्रेंथ कम आएगी और क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। ऑल्दो सिलेंडर की स्ट्रेंथ कम आएगी बट वो एक्यूरेट होगी, और क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी बट वो अनएक्यूरेट होगी, वो करेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं करेक्ट होगी? क्योंकि उसमें रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है। सो एज वी कैन सी हियर in central portion of cylindrical specimen there is no effect of lateral stress, that is restraining effect. Hence it will fail in central zone,
in central zone, and it will have less strength as compared to cubical specimen, but it is more correct, तो यही हमें यहां समझना है कि ऑल्दो इसकी स्ट्रेंथ कम है बट इट इज मोर करेक्ट। इसीलिए आईएस कोड ने क्या किया है, इसीलिए ये चीज आप लिख लीजिएगा, दिस इज द नोट, आपको ये सारी चीजें लिखनी है, तो ये आप यहां पे पॉज करिएगा और ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए, इसीलिए आईएस कोड ने एक आपको यहां पे करेक्शन फैक्टर दिया हुआ है। देखो होता क्या है रिलेशन, क्यूबिकल स्ट्रेंथ जो होती है या सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ जो होती है, आप यहां पे देखेंगे सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ जो होती है, जो मिलती है ऑब्वियसली कम होगी लेकिन वो करेक्ट होगी, तो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ जो होगी दैट विल बी 0.8 टाइम्स, जनरली 0.8 टाइम्स क्यूबिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो क्यूबिकल स्ट्रेंथ की लगभग 80% होती है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन को ही करेक्ट मानते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ को ही करेक्ट मानते हैं। अगर हम लोग क्यूब से टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम लोग 0.8 टाइम्स करेक्शन फैक्टर लगा के जो स्ट्रेंथ आती है उसको कंसिडर करते हैं। और इसके लिए कोड ने एक टेबल दिया हुआ है, ये जो मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूं, दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ देखेंगे आप, और ये ग्राफ जो है ये आईएस कोड का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ आईएस कोड। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है IS 516, या IS 516 का ग्राफ है, और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है रेशियो ऑफ हाइट टू डायमीटर, और ये रेशियो जब 2 है, अब आप देख सकते हैं 2 कब है ये रेशियो ऑफ हाइट टू डायमीटर, इट इज इन द केस ऑफ सिलेंडर, तो ये है सिलेंडर, तो सिलेंडर के केस में हाइट टू डायमीटर, ध्यान से देखिएगा यहां पे हाइट टू डायमीटर रेशियो है और ये सिलेंडर का केस है, तो सिलेंडर के केस में हाइट टू डायमीटर रेशियो 2 है, तो उस केस में जो करेक्शन फैक्टर है कोई जरूरत नहीं उसमें करेक्शन फैक्टर की, दैट इज 1, वो करेक्शन फैक्टर 1 है, मतलब जो भी स्ट्रेंथ आएगी वही हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ हो जाएगी। बट अगर हम लोग यहां पे आते हैं हाइट टू डायमीटर रेशियो 1, यहां आते हैं, तो यहां हाइट टू डायमीटर रेशियो जब 1 आते हैं तो यहां पे देखिए ये किसका केस है, क्यूब का केस है, और क्यूब के केस में आपको करेक्शन फैक्टर ये अराउंड 0.8 है, दिस इज अराउंड 0.8, तो 0.8 का आपका लगभग करेक्शन फैक्टर यहां पे लगता है, तो यही करेक्शन फैक्टर मैंने यहां पे दिखाया है। तो जब भी आपको क्यूब से स्ट्रेंथ मिली है तो उसमें करेक्शन आपको लगाना पड़ेगा 0.8 टाइम्स का, तो वो जो स्ट्रेंथ मिलेगी सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ इज, आपको पता है कि सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ इज मोर क्लोजर टू एक्चुअल स्ट्रेंथ। हाँ, एकदम से एक्चुअल नहीं हो सकती है, 100% करेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि देयर आर सम अदर एरर्स आल्सो व्हिच में अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बट यस सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ इज मोर करेक्ट एज कंपेयर टू क्यूबिकल स्ट्रेंथ। कैसे करेक्शन फैक्टर लगता है वो भी आप देख लिए, क्या रीजन होता है, दैट इज द रीजन रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट, क्योंकि क्यूब में ये थ्रू आउट द लेंथ होता है, इसलिए क्यूब की पूरी स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है और ज्यादा हो जाती है, वो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन यहां पे ये सेंट्रल पोर्शन में ये रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं होता, इसलिए यहां पे इसका इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ कम आती है और सही आती है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग स्ट्रेंथ कैलकुलेशन यहां पे किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट टेस्ट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट। सो इन टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, so as we all know, in tensile strength we have to apply the tensile loading. If we are doing tensile strength test, direct tensile strength test, then I have to make a specimen, जैसा कि हम मोटार में बनाते थे, like this, ऐसा कोई specimen बनाते थे और फिर हम लोग इस पे इस तरह से हुक लगा के इधर से इस तरह से लोडिंग लगाते थे, यहाँ पे एक जॉ लगा के हुक लगा के यहाँ पे लोडिंग लगाते थे, like this. So this is a technique to apply the load in direct tensile testing. But direct tensile testing हम लोग कंक्रीट में नहीं करते। अगर डायरेक्ट टेंसाइल टेस्टिंग करनी होती तो हमें इस टाइप का स्पेसिमेन बनाना पड़ता एंड देन वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट टेस्टिंग। बट इन कंक्रीट वी डू नॉट डू कंक्रीट टेस्टिंग डायरेक्टली, क्योंकि नॉर्मली इन द केस ऑफ कंक्रीट, इन इवन इन केस ऑफ मोटार ऑल्सो, नॉर्मली टेंसाइल लोडिंग नहीं आता है स्ट्रक्चर पे, वो इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आता है। हम टेंसाइल मेंबर कभी भी कंक्रीट या मोटार का नहीं बनाते हैं। सो यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको ना मेजर करके इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, जो कि नॉर्मली हमें फील्ड में देखने को मिलता है। जैसे टेंशन जो डेवलप होता है ड्यू टू बेंडिंग, या फिर टेंशन डेवलप होता है ड्यू टू कंप्रेशन,
क्योंकि जैसे हम कंप्रेशन करते हैं तो उसका इंडक्शन जो होता है, उसका इंड्यूस जो होता है, उसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस, उसकी वजह से जो फेलियर होता है, तो इस टाइप का पैटर्न हम लोग यहाँ पे करके उस हिसाब से टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। वी आर नॉट जनरेटिंग डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन द स्पेसिमेन, ये हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो फिर कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है। और उस इनडायरेक्ट में फर्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में जो पहला है दैट इज फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। जो पहला टेस्ट है इसमें दैट इज फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो आप इसको नोट कर लेंगे, फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है, बेंडिंग। अभी आप लोग सोम में आरसीसी में पढ़ेंगे, फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग। सो दिस इज द बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि यहां हम बेंडिंग लाएंगे। जैसे कोई स्पेसिमेन है और अगर मैं इसको बेंड कर रहा हूं, बेंडिंग तो समझते होंगे, बेंडिंग मतलब मैं इसको इस तरह से, ये जैसे ये पेन है और इस पेन को मैं बेंड कर रहा हूं, ऐसे मैं बेंड कर रहा हूं, तो बताइए क्या होगा, ऊपर की तरफ टेंशन आएगा, क्योंकि ऐसे मैं बेंड करूंगा तो ऊपर की तरफ टेंशन आएगा और नीचे की तरफ कंप्रेशन आएगा, ऊपर की तरफ टेंशन और नीचे की तरफ कंप्रेशन। तो यहां पे भी यही होता है, जैसे मैं इसको बेंड करूंगा तो यहां पे ऊपर की तरफ टेंशन आ जाएगा और नीचे की तरफ ये कंप्रेस हो रहा होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से टेंसाइल हो रहा होगा, तो यहाँ पे कंप्रेशन आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली बेंडिंग। तो बेंडिंग की वजह से यहां टेंशन इंड्यूस हो रहा है, तो इस टेंशन में कितनी स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, वी वांट टू नो दैट। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन यहां पे टेस्ट है जिसको हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब कैसे परफॉर्म करते हैं, अभी IAS 516 के अकॉर्डिंग इसके सारे प्रोसीजर्स हैं और उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे इसमें हम लोग जब इसको परफॉर्म करेंगे तो हमें apparatus की जरूरत पड़ेगी। एंड व्हाट आर द apparatus विच वी आर गोइंग टू यूज। सो इसमें हम लोग यूज करते हैं apparatus में, पहला यूज करते हैं स्पेसिमेन या मोल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं मोल्ड। और मोल्ड्स इसमें जो साइज के होते हैं मोल्ड्स, अगर मैं दो कैटेगरी में मोल्ड्स को डिवाइड करूं तो टाइप 1 जो मोल्ड हम लोग यूज कर सकते हैं दैट इज टाइप 1, तो वो होता है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्रिज्मेटिक मोल्ड होता है, ठीक है। प्रिज्मेटिक मोल्ड क्या साइज है, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो टाइप 2 है, टाइप 2 ये ऑप्शनल है, टाइप 2 इज ऑप्शनल विच कैन बी यूज्ड, टाइप 2 इज ऑप्शनल एंड साइज इज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 centimeter into 50 centimeter. This is the second type of mold which can be used for flexural tensile strength testing. But it can be used only when, and it is optional. It can be used only when aggregate size is less than 19 mm. तो ये तभी यूज हो सकता है जब एग्रीगेट साइज लेस देन 19 mm हो, तब जाके हम ये स्पेसिमेन यूज कर सकते हैं। इट इज ऑप्शन अवेलेबल विद द मोल्ड अवेलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा ये मोल्ड्स हो गए, इसके अलावा apparatus में हमें क्या चाहिए, 2 point लोडिंग अरेंजमेंट। इसमें apparatus में दूसरा चीज हमें चाहिए 2 point लोडिंग अरेंजमेंट, दैट इज द केस 2 point लोडिंग अरेंजमेंट। तो ये है, अगर आपका स्पेसिमेन है तो उस पर हम लोडिंग लगाते हैं 2 point लोडिंग अरेंजमेंट, और वो लोडिंग इस तरह से होती है कि बेंडिंग जनरेट हो और बेंडिंग से टेंशन आए और उस टेंशन से फेलियर हो, और उस टेंशन से जो फेलियर होगा तो उस फेलियर के टाइम उसमें कितना टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा, कितना टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, उसी को हम लोग कहेंगे फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्ड चाहिए और 2 point लोडिंग अरेंजमेंट चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे apparatus की तरह यूज करेंगे। अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मैं दोनों केसेस लेके चल रहा हूँ, टाइप 1 टाइप 2 मोल्ड दोनों का डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, दोनों का एक सिमेट्रिक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए होता क्या है, इसमें ये जो स्पेसिमेन है इट इज लाइक दिस, ये स्पेसिमेन ऐसा रखा जाता है, ये बनाएंगे हम लोग। ये टाइप 1 है, ये प्रोसीजर टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 में ये आपका स्पेसिमेन है और ये टाइप 2 है, और टाइप 2 में भी स्पेसिमेन ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा वो छोटे साइज का होगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये टाइप 2 है, दिस इज टाइप 2।
नाउ अब इस पे हम लोग लोडिंग लगाते हैं, 2 पॉइंट लोडिंग लगाते हैं। कैसे लोडिंग लगाते हैं देखिए, इसमें हम लोग नीचे रोलर सपोर्ट यहां लगाते हैं जिस पे इसको प्लेस कर देते हैं, और ऊपर इस पे अब 2 पॉइंट लोडिंग लगाते हैं, वो भी रोलर की मदद से लगाते हैं लाइक दिस। इस तरह से हम इस पे लोडिंग लगाते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी यही टेक्निक है, और यहां पे भी इसी तरह की लोडिंग हम लोग लगाते हैं लाइक दिस। अब यहां पे जो हम लोग लोडिंग लगाते हैं इनकी स्पेसिंग क्या होती है, दोनों के केस में अलग अलग। यहां पे ये जो प्रोजेक्शन होगा जो रोलर के बाहर, ये 5 सेंटीमीटर का, यहां पे ये 5 सेंटीमीटर का। तो बताइए टोटल लेंथ कितना था, टोटल लेंथ याद है ना आपको, दैट वाज 70 सेंटीमीटर। अभी मैंने लिखा था दिस इज द टोटल लेंथ दैट इज 70 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका 70 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें 5 चला गया तो बचा कितना बीच में, नाउ द रिमेनिंग इज दिस इज 60 सेंटीमीटर। नाउ अब ये जो 60 सेंटीमीटर, इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये कितना हुआ 20, ये भी 20 और ये भी 20, ठीक है। और इस तरह से हम लोग लोडिंग लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका डायग्राम आप बना लीजिएगा। ये टोटल 70 हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हमने ओवरहैंग दे दिया एक तरह से, जो बचा बीच में दैट इज 60। एंड नाउ दिस 60 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंड द सेंट्रल, जो सेंट्रल 1/3 है, ऑन सेंट्रल 1/3 2 पॉइंट लोडिंग is applied, 2 पॉइंट लोडिंग is applied, ठीक है। तो ऑन सेंट्रल 1/3 2 पॉइंट लोडिंग is applied लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली यहां पे कितना हो जाएगा डायमेंशन, देखिए यहां पे ये 5 सेंटीमीटर, यहां पे भी ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ यहां पे अब बचा कितना, देखिए टोटल कितना था इस केस में, द टोटल इज इन दिस केस द टोटल इज 50। अब 50 में से आपने 5 निकाल दिया तो बचा कितना, द रिमेनिंग इज 40। नाउ दिस 40 is divided into 3 portions like this. This 40 is divided into 3 portions. Now it become 13.33 like this. So this is the spacing, actual spacing जो है वो आपने यहाँ पे ये दिखा दिया। तो ये इस तरह से हम लोग लोडिंग इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। here also loading is applied, at middle 1/3, ठीक है। तो मिडिल 1/3 पे हम लोग लोडिंग अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक चीज आपको लग रहा होगा कि सर ये मिडिल 1/3 कैसे हुआ, ये तो 13.33 आपने डिवाइड किया, ये 5 सेंटीमीटर का को आपने इग्नोर किया। यस, उसको मैंने इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया, रीजन इज कि दिस रोलर इज हैविंग ऑलरेडी 38 mm डाया, सो द पोर्शन ऑफ एग्जैक्ट पॉइंट लोडिंग कॉन्टेक्ट इज 38 centimeter already. This roller is up to here, so this clear spanning is not 5 centimeter, it is very less. It is I think जब आप 38 का आधा करोगे तो that is around 90, तो 2 सेंटीमीटर तो इसी में चला गया, तो 3 सेंटीमीटर is actual projection and that is also negligible। और यहाँ पे कोई लोडिंग भी नहीं है, इसीलिए we are neglecting that portion, that we are assuming that this specimen is in between roller support, जो center of roller support है उसके बीच में है ये specimen, उसके इधर या उधर वो specimen नहीं है। वो ओवरहैंग जस्ट सेफ्टी के लिए गिवन है, उसको हमने कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। अगर आप इसका एक्चुअल पिक्चर देखें जो आपको कैसा दिखता है, सो यू कैन सी हियर, दिस इज द एक्चुअल 2 पॉइंट लोडिंग अरेंजमेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन ऑब्जर्व हियर। ये दोनों की केस के लिए सेम ही है, आप ये देख सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल 2 पॉइंट लोडिंग अरेंजमेंट दिख रहा है आपको। ये रोलर सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट्स है, ये कुछ यहाँ पे ओवरहैंग दे के हम लोग इनको प्लेस करते हैं। जो ये सेंटर, ये 2 पॉइंट लोडिंग है, ये 2 रोलर ऊपर है जो 2 पॉइंट लोडिंग लगाते हैं, और यहाँ से लोडिंग लगती है, और ये मिडिल 1/3 पे लोडिंग होती है, और ये स्पेसिमेन होता है आपका। और इस तरह से जब आप लोडिंग लगाते हैं, जब इस तरह से आप लोडिंग लगाते हैं, तो इधर की तरफ और इधर की तरफ बेंडिंग होती है, जिससे नीचे टेंशन आता है और ऊपर कंप्रेशन आता है, और टेंशन में ये यहाँ पे फेलियर हो रहा है, जो दिख रहा है आपको ये फेलियर हो रहा है। और इस फेलियर के समय यहाँ पे एक जो स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी, वो जो सिग्मा टी की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस सिग्मा टी इज कॉल्ड एज फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो दिस इज द प्रोसीजर, कैसे हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यू कैन सी हियर कि इस तरह से हमने स्पेसिमेन बनाया,
और स्पेसिमेन के ऊपर ये नीचे से रोलर सपोर्ट पे इसको प्लेस कर दिया। ऊपर से ये 2 पॉइंट लोडिंग, इसको इसलिए 2 पॉइंट से आ रही है तो 2 पॉइंट लोडिंग कहते हैं। 2 पॉइंट लोडिंग विल अप्लाई हियर, एंड ये जो 2 पॉइंट लोडिंग हम अप्लाई करेंगे ये सेंटर मिडिल 1/3 में अप्लाई होगी। और इस 2 पॉइंट लोडिंग की वजह से यू कैन सी हियर कि यहाँ पे बेंडिंग आएगी, इस तरह से बेंडिंग आएगी। आप लोग सोम पढ़ेंगे उसमें क्लियर होगा। सो दिस इज द बेंडिंग, और बेंडिंग होने से नीचे के पोर्शन में टेंशन आएगा और ऊपर में कंप्रेशन आएगा। नीचे टेंशन आएगा और ऊपर कंप्रेशन आएगा, और इस टेंशन की वजह से ऑब्वियसली आपको पता है क्रैक डेवलप होंगे। और ये जो क्रैक, जब पहला क्रैक डेवलप होगा तो उस समय जो ये जो स्ट्रेस की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, और इस समय जो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो स्ट्रेस की वैल्यू ही क्या कही जाएगी, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेस की वैल्यू जिसपे ये क्रैक हो रहा है, that value is called as flexural tensile strength. So this is the procedure. I think it's clear now. So this is the procedure. अब हम लोग इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं? Now we'll see how we can do the calculation. तो प्रोसीजर के बाद अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन दिखाना चाहें तो जो भी हमारा ये जो डायग्राम था इसको हम लोग अगर लाइन डायग्राम बनाए और दोनों के लिए सेम ही डायग्राम बनेगा तो क्या डायग्राम बनेगा, हमने ओवरहैंग पोर्शन को इग्नोर कर दिया। तो ओवरहैंग को जब इग्नोर कर दिया तो यहाँ पे हमने सपोर्ट मान लिया, ओवरहैंग को इग्नोर कर दिया, और इस टोटल लेंथ को मैंने चलो L मान लिया। आई एम अज्यूमिंग दिस होल लेंथ इज L। तो जो लोडिंग हो रही है वो सेंट्रल 1/3 पे हो रही है, तो ये हो जाएगा L/3, ये भी L/3 और ये भी L/3। ये हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया। मतलब क्या किया कि ये ओवरहैंग पोर्शन इधर इग्नोर कर दिया, इधर इग्नोर कर दिया। ये जो टोटल था 60 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, इसको मैंने L मान लिया, तो ये L/3 L/3 L/3। यहाँ पे भी इसको L मान लिया, तो ये L/3 L/3 L/3। और ये जो रोलर सपोर्ट है ये ऊपर से लोडिंग लगा रहे हैं और ये नीचे से जो रोलर सपोर्ट है ये रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है जो टोटल लोड लग रहा है यहाँ पे P लग रहा है, ये जो टोटल लोड है यहाँ पे P लग रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल लोड P लग रहा है, तो यहाँ पे ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा P/2 यहाँ पे भी P/2 तो ये लोड विल बिकम इन 2 पार्ट, दैट विल बी P/2 एंड P/2। दिस इज द टोटल लोड जो इस पे अप्लाई हम करेंगे। अब उसके बाद जब आप ये लोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शंस भी आएंगी, और रिएक्शंस कितनी आएंगी तो सिमेट्री से आप देख सकते हैं कि जितना लोड होगा उतनी रिएक्शंस आएंगी। तो ये भी P/2 और इधर भी ये रिएक्शन भी कितनी हो जाएगी P/2। सो दिस इज द सिंपल डायग्राम। जो यहाँ पे प्रैक्टिकल डायग्राम है उसको मैंने थ्योरेटिकली समझने के लिए ऐसा ड्रॉ कर लिया। दिस इज द प्रैक्टिकल डायग्राम, और उसको समझने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग इसका हम लोग अगर देखें बेंडिंग डायग्राम, अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो आप लोग पढ़ेंगे अभी ये सब सोम में, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ लोग पढ़े होंगे अपने कॉलेज टाइम में। तो इसका अगर हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाएं, शियर फोर्स डायग्राम, अगर हम लोग इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएं तो देखिए कैसा बनता है शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन लीजिए और नेट फोर्स उसके एक साइड का देखिए। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, इस साइड कितना फोर्स है P/2, तो चलो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज P/2। यहाँ इतना फोर्स है और ये फोर्स यहाँ से यहाँ तक सेम ही है, तो यहाँ से यहाँ तक चले गए। फिर यहाँ जब हम इसके इधर जाके क्रॉस सेक्शन लिए, यहाँ जाके क्रॉस सेक्शन लिए तो नेट फोर्स कितना हो गया P/2 ऊपर की तरफ, P/2 नीचे की तरफ, मतलब नेट फोर्स 0। और ये पूरे में आप देखें यहाँ पे भी जाए तब भी ये 0 ही है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 0 है। फिर से जब हम इसमें गए तो फिर से हमारे पास नेट फोर्स आ गया कितना P/2 का। तो यहाँ पे अब हमको नेट फोर्स, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, जब SFD बनाते हैं तो इसमें एक साइन कन्वेंशन होता है लाइक दिस, उसमें हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इधर से आपने देखा तो इसका डायग्राम अगर आप इधर से बनाएंगे तो ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे हमने चलो इसको ऊपर की तरफ बना दिया, या इसको चलो हमने इस तरह से ऊपर की तरफ बना दिया, और ये कांस्टेंट यहाँ तक आया। और जब हमने क्रॉस सेक्शन से इधर देखा तो एक तरफ ये नीचे होगा, एक तरफ ये ऊपर होगा, ये एक तरफ ये नीचे हो जाएगा और एक तरफ ये ऊपर हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे इसको हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया तो ये अप है, ये अप है, तो इसको हमने प्लस ले लिया। और इधर जब क्रॉस सेक्शन लिया हमने, तो यहाँ पे जब हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन हम लोग नॉर्मली ये साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि दिस इज प्लस। सैगिंग होता है, ये देखिए ये सैगिंग है, और ये शियर फोर्स क्रॉस सेक्शन के इधर की तरफ है, वो नीचे की तरफ अगर है तो वो पॉजिटिव, और अगर नॉर्मली यस क्रॉस सेक्शन, एक बार इसको करेक्ट कर लीजिए, साइन कन्वेंशन करेक्ट कर लीजिए। साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन, कोई भी साइन कन्वेंशन आप फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली वी फॉलो दिस साइन कन्वेंशन एज पर द सिचुएशन। नॉर्मली वी फॉलो साइन कन्वेंशन फॉर SFD BMD। तो साइन कन्वेंशन क्या रहता है, साइन
कन्वेंशन, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन ये होता है नॉर्मली कि दिस इज कंसिडर एज पॉजिटिव। मैं ये लेके चल रहा हूँ, आप लोग चेंज भी कर सकते हैं साइन कन्वेंशन। सो दिस इज द साइन कन्वेंशन। और अगर ये साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है तो देखिए इसका एसएफडी कैसा बन जाएगा, ये एसएफडी कैसा होगा, लाइक दिस। अब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ है तो ये नेगेटिव होगा लाइक दिस, और ये इस तरह से यहाँ तक आएगा। अब इसके बाद यहाँ जाने के बाद ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो ही चलता रहेगा। और जब हम यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ इस सेक्शन में पहुँचेंगे तो नेट फोर्स हमें नीचे की तरफ मिल रहा है तो दैट बिकम पॉजिटिव। सो लाइक दिस इज द एसएफडी डायग्राम जो आपको दिख रहा है। तो ये एसएफडी डायग्राम है, p/2 इसकी वैल्यू है, p/2 इसकी वैल्यू। ये डायग्राम मैंने इसलिए आपको दिखाया, इट इज जस्ट कि यहाँ से हम लोगों को आइडिया मिल रहा है कि सेंट्रल वाले पोर्शन में कोई शियर फोर्स नहीं है। यहाँ शियर फोर्स है, सेंटर में कोई शियर फोर्स नहीं है, और फिर यहाँ पे शियर फोर्स है। तो यहाँ पे आपका शियर फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे नेट शियर फोर्स ऊपर की तरफ है, वो नेगेटिव कर दिया हमने। यहाँ जाके ये कैंसिल हो गया। यहाँ आके जब हमने देखा तो नेट शियर फोर्स नीचे की तरफ है तो हमने पॉजिटिव कर दिया। तो दिस इज द सेंट्रल पोर्शन जहाँ पे कोई शियर फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई शियर फोर्स नहीं है। तो ऐसा केस जहाँ पे कोई शियर फोर्स नहीं होगा उसको हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब इसी का हम लोग बीएमडी बनाते हैं। अब इसी डायग्राम का, इसी लोडिंग का अगर हम लोग बीएमडी बनाएं तो बीएमडी में देखिए क्या होता है। बीएमडी डायग्राम इस टाइप का साइन कन्वेंशन होता है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तो p/2 इंटू l/3, यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलेगी एंड दैट वैल्यू विल बी p/2 इंटू l/3, ठीक है। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, इधर आ रहे हैं तो आप देखिए p/2 इंटू l/3 प्लस दिस वैल्यू माइनस p/2 इंटू दिस वैल्यू, तो वो ये माइनस हो जाएगा तो नेट बचेगा आपका सेम वही, और इसका मतलब ये कांस्टेंट ही रहेगा। और फिर आप जब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं अब आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव आपको सैगिंग दे रहा है, ये इधर से आपको सैगिंग मिल रही है, लेकिन यहाँ से ये नेगेटिव होगा तो इससे ये कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा बीम सैगिंग में होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा p/2 इंटू l/3, तो दैट इज PL/6, और ये भी आपका है PL/6। सो दिस इज द सैगिंग डायग्राम, ठीक है। ये आपका सैगिंग डायग्राम है पूरा का पूरा, और इसमें ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है। अब ये जो सेंट्रल पोर्शन है आप देख सकते हैं, सेंट्रल पोर्शन है जो यहाँ पे आपका, ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसमें आपका बेंडिंग मोमेंट जो है वो कांस्टेंट है। बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है और शियर फोर्स 0 है। बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट एंड शियर फोर्स इज 0। सो दिस जोन, जहां पे द जोन, ये आप लोग सोम में सब पढ़ेंगे, द जोन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, bending moment is constant and shear force is 0, shear force is 0। ये ऐसा होगा ही, जहां पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा वहीं पे शियर फोर्स 0 होगा, क्योंकि dm/dx इक्वल टू SF होता है, और अगर SF इज 0 देन ओनली dm/dx एंड m इज कांस्टेंट। सो यहाँ पे शियर फोर्स इज 0, देन दिस जोन इज कॉल्ड एज प्योर बेंडिंग जोन, इज कॉल्ड एज प्योर बेंडिंग जोन। इस जोन को हम लोग कहते हैं प्योर बेंडिंग जोन। इस जोन को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर बेंडिंग जोन। तो दिस इज द जोन वेयर ओनली बेंडिंग इज टेकिंग प्लेस, और हम चाहते हैं कि सिर्फ बेंडिंग हो, ये हमारा प्राइम एम है, हम चाहते हैं कि सिर्फ बेंडिंग हो। अगर सिर्फ बेंडिंग होगी तभी तो हमें जो टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा वो सिर्फ बेंडिंग की वजह से मिलेगा, क्योंकि हम लोग चाहते क्या है कि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें, तो हम लोग को बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ही कैलकुलेट करनी है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, हमें बेंडिंग की ही जरूरत है। वी नीड बेंडिंग ओनली। तो जब हमें बेंडिंग की जरूरत है तो हमें बेंडिंग ही चाहिए, और जब बेंडिंग चाहिए तो हम लोग फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो प्योर बेंडिंग जोन हमने यहाँ पे डेवलप कर लिया। और यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप देख के डायग्राम बता सकते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू हाउ मच, इस पूरे डायग्राम में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, दिस इज द वैल्यू दैट इज PL/6। सो दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन दिस केस। यहाँ पे ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। क्यों मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला, क्योंकि आपको पता है कि फेलियर कहां से होगा, जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहीं से फेलियर होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए फेलियर कैसा होगा, अब हमें समझना है। तो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। जो आपका रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट में 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। अब आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है या फिर लोडिंग डायग्राम आप देख सकते हैं। देखिए ये आपका लोडिंग डायग्राम है, दिस इज द लोडिंग डायग्राम, ठीक है। अब इसमें इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लाइक दिस, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लाइक दिस, ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। दिस इज द लोडिंग डायग्राम एंड दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
अब इसमें जोन बताइए, दिस इज मैक्सिमम बेंडिंग जोन और नॉट, ये जो जोन है, अब देखिए ये L/3 है, ये L/3 है और ये भी L/3 है। अब इसमें आप ये चीज मुझे बताइए कि दिस जोन is maximum bending moment zone or not? Yes, obviously it is maximum bending moment zone. So crack should be developed in this zone only. क्रैक जो डेवलप होना चाहिए वो इसी जोन में कहीं डेवलप होना चाहिए। यस, ऑब्वियसली यही होना चाहिए, थ्योरी यही कहती है और थ्योरेटिकली होना भी यही चाहिए। तो हम लोग यहाँ लेते हैं केस वन लेते हैं, और केस वन समझने से पहले हम लोग यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं। केस वन समझने से पहले यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि ये जो क्रैक डेवलप होगा, पहला क्रैक जो डेवलप होगा वो कहाँ डेवलप होगा। मान लेते हैं कि इट इज डेवलपिंग इन दिस जोन ओनली, इसी जोन में डेवलप होगा। ऑब्वियसली थ्योरी हमारी यही कह रही है कि इसी जोन में डेवलप होगा, इट विल डेवलप समवेयर हियर, एंड दिस इज द डिस्टेंस ए, दिस इज द डिस्टेंस ए जहां वो डेवलप हो रहा है। कहां से है ये डिस्टेंस? ए इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट क्रैक developed from nearest support. This is the value meaning of A. A is the distance of first crack developed फ्रॉम नियरेस्ट सपोर्ट। जैसे ये यहां से मेजर होगा, अगर हाफ के इधर गया तो फिर ये यहां से मेजर होगा। तो अल्टीमेटली ये जो ए है ये दोनों तरफ से मेजर होगा सिमेट्री की वजह से। ठीक है, हाफ तक यहां से मेजर होगा या हाफ से यहां तक, या हाफ से यहां से मेजर होगा। ठीक है, अब देखिए दिस ए इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट क्रैक। तो आपको पता है अब यहां पे क्रैक इसी जोन में होने के चांसेस हैं, इसी जोन में होने के चांसेस हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है बताइए? केस वन मतलब अगर इस जोन में हमने अज्यूम कर रखा है तो केस वन में ए क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू L/3 होगा कि नहीं? अब देखो L/3 यहां तक है तो ए इससे बड़ा ही होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू L/3, और वो यहां तक जा सकता है, मिडिल तक जा सकता है। फिर इधर से अगर आप मिडिल के इधर जाएगा तो इधर से मेजर करेंगे तब भी वो L/3 से बड़ा ही होगा, क्योंकि इसी जोन में है, इस सेंट्रल जोन में है, इस सेंट्रल जोन में ए है, इस सेंट्रल जोन में ए है, तो L/3 इधर से भी बड़ा होगा, L/3 इधर से भी बड़ा होगा, मतलब ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू L/3। और अब ये किस जोन में है? प्योर बेंडिंग जोन में है, जो हमने अभी यहां डिस्कस किया, दिस इज प्योर बेंडिंग जोन। तो ये प्योर बेंडिंग जोन में है, और इफ इट इज इन प्योर बेंडिंग जोन देन अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि यहां पे बेंडिंग होगी, प्योर बेंडिंग होगी, इससे यहां टेंशन में क्रैक आएगा यहां पे, और जब क्रैक आएगा तो यहां पे एक स्ट्रेस डेवलप होगा जो जिसकी वजह से क्रैक आएगा। तो इस स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें पता करनी है। तो इस केस में फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। ये जो होती है वो क्या होती है? बेसिकली मैक्सिमम बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, इसको हम लोग सिग्मा टी बोलेंगे, और सिग्मा टी इक्वल टू क्या होगा? दैट विल बी अ फॉर्मूला फॉर प्योर बेंडिंग। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर प्योर बेंडिंग, ये फॉर्मूला यूज होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? आप लोग पढ़ेंगे सोम में, दैट इज M/Z, M इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, और Z इज सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो Z इज सेक्शन मॉडुलस। देन आई विल पुट द वैल्यू हियर। तो M कितना है यहाँ पे आप देखिए, M इज PL/6, याद करिए यहाँ पे देखिए M इज PL/6 एंड डिवाइडेड बाई Z का फॉर्मूला होता है सेक्शन मॉडुलस का रेक्टेंगल के लिए BD²/6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ पे हम लोग BD²/6, 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा फॉर्मूला? PL/BD²। This is sigma T and this is flexural tensile strength. This is flexural tensile strength. ये आपको फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी। दिस इज द सिग्मा टी, दिस इज फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। कितनी मिल रही है फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको? दैट इज PL/BD²। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर इट। 2 पॉइंट लोडिंग के केस में ये फॉर्मूला आता है, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों को समझना है। सो दिस इज द सिग्मा टी PL/BD²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। बट व्हेन केस इज 1, जब हमारा केस 1 है और A इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू L/3, ये तभी होगा जब A इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू L/3।
तब आपका ये आंसर होगा। सिग्मा टी इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यह फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके गेट में, ईएससी में, हर जगह यहां से क्वेश्चन आए हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए मैंने आपको बताया सारी चीजें। कई लोग सोम पढ़ चुके होंगे, उनके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन जो कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे उनको लिए मैं बहुत बेसिक चीजें भी डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और कुछ चीजें अगर आपको नहीं भी क्लियर होती हैं सोम से रिलेटेड, जैसे सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, तो ये चीजें आपको सोम में डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। बस अभी के लिए आप समझ लीजिएगा कि देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ सेक्शन मॉडुलस दैट इज फॉर रेक्टेंगल दैट इज BD स्क्वायर बाई 6। B is the width and D is the depth of the cross section. So this is the case. अब केस 2 क्या हो सकता है? देखिए केस 2 क्या होगा। केस 2 ये होगा, पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे कि केस 2 में ये जो क्रैक डेवलप हो रहा है, मान लेते हैं, देखिए थ्योरेटिकली तो इसको इस जोन में डेवलप होना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली ऐसा हमने देखा जब हमने लोड लगा के देखा कि ये जो क्रैक डेवलप हुआ, अब जो क्रैक डेवलप हुआ, इस केस में जो क्रैक डेवलप हुआ वो बाहर होने लगा क्रैक डेवलप में। अब जो क्रैक डेवलप हुआ वो क्या किया कि अब वो इस जोन में क्रैक डेवलप नहीं हो करके, अब वो क्रैक डेवलप, मान लीजिए अब वो जो क्रैक डेवलप हो रहा है वो कहीं यहां हो रहा है, जस्ट इस जोन से बाहर हो रहा है क्रैक डेवलप। जब जस्ट इस जोन से बाहर हो रहा है क्रैक डेवलप, तो ये कहां क्रैक डेवलप हो रहा है ये हम लोगों ने चेक किया। और जब जोन से बाहर हुआ और चेक किया तो हमने अब इस केस में जो ए लिया, जब ये जब मैं दोबारा दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, मतलब ये दोबारा ए हमने मेजर किया है। अब इस केस में यही ए हो जाएगा, जहां क्रैक डेवलप होगा वही ए हो जाएगा। देखिए इस केस में, पहले केस में ए यहां था क्योंकि वहां क्रैक डेवलप था, अभी क्रैक यहां डेवलप हो रहा है तो ये ए चेंज हो गया, ये जो दूसरा ए हो गया, दूसरे कलर से मैंने दिखाया, दैट बिकम ए। और ये जो ए है, अब वो ए किस जोन में है, हम मान रहे हैं कि ए जो है यहाँ पे ये इस जोन में है, हियर केस 2 ले रहे हैं, और केस 2 में हम ले रहे हैं टाइप 1 स्पेसिमेन के लिए अलग डेटा आएगा और टाइप 2 स्पेसिमेन के लिए अलग आएगा, क्योंकि दोनों की लेंथ अलग अलग है। तो इसमें ए जो है वो कहां है, दैट इज बिटवीन 17 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए इसको, यहां आप समझिए, यहां ध्यान से देखिए, ये देखिए अब आपका यहां से मेजरमेंट हो रहा है, ये कॉर्नर है, और अब आपका ए यहां पे होता तो ये तो 20 से ज्यादा पे हो जाता, वो पहला केस हो गया। दूसरे केस में ए अब यहां है, कहीं यहां ए है, और ये जो ए की डिस्टेंस होगी वो 20 से तो कम ही होगी, लेकिन किससे ज्यादा होनी चाहिए, 17 से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पे हमने ये माना है कि ये क्रैक बाहर तो है, तो ये जो ए की वैल्यू है ये 20 से कम होगी, दिस वैल्यू इज ए वैल्यू, ये वैल्यू 20 से कम होगी बट 17 से ज्यादा होगी। दिस इज द केस कि यहां पे हमारा जो ए है, ये देखिए L/3 है, पहले केस में तो 60 टोटल था, L/3 20 हो गया, तो 20 से कम है लेकिन 17 से ज्यादा है, हमने ये माना है टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या हो जाएगा, ये L/3 होता है 13.33, वहां पे L/3 कितना होता है, दैट इज 13.33, तो 13.33 से कम होगा क्योंकि क्रैक कहीं यहां डेवलप होगा, तो 13.33 से कम होगा लेकिन 11 से ज्यादा होगा। तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कि ए इज 17 टू 20 सेंटीमीटर, और टाइप 2 में क्या होगा 11 सेंटीमीटर टू 13.33 सेंटीमीटर के बीच में होगा। मतलब ये जो ए है, मतलब क्रैक डेवलप हो रहा है वो इस मिडिल 1/3 के इधर हो रहा है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये L/3 है, और ये L/3 दोनों टाइप में अलग अलग है। टाइप 1 में ये L/3 है, टाइप 1 में ये L/3 आपको 20 मिलेगी, और टाइप 2 में L/3 13.33 मिलेगी। तो A की मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो सकती है 13.33, तो ये उससे कम है, लेकिन ज्यादा किससे होना चाहिए, पहले केस में 17 से ज्यादा और दूसरे केस में 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये ऐसा है, इस जोन में अगर आपका डेवलप हो रहा है क्रैक, अगर इस जोन में क्रैक डेवलप हो रहा है, देन फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज सिग्मा टी विल बिकम, इसके लिए अब हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं 3Pa/BD स्क्वायर। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन इन IS कोड। अब इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड, दैट इज 3Pa/BD स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला यहां पे यूज करते हैं। नाउ केस 3, यहां पे केस 3 भी हो सकता है। केस 3 में क्या हुआ कि अब आप कहेंगे कि सर क्रैक, पहली बार आपने कहा कि क्रैक मिडिल में डेवलप हो रहा है, नहीं हुआ, फिर आपने कहा मिडिल से थोड़ा बगल में हो रहा है, 11 और 13.33 या 17 और 20 के बीच में हो रहा है, वो भी नहीं हुआ। तीसरा केस क्या बन सकता है कि मान लीजिए ये जो क्रैक है ये अब 17 से भी पहले हो रहा है, क्रैक कहीं यहां हो रहा है। अब मैं इसको और तीसरे कलर से दिखाऊं कि क्रैक कहीं यहां हो रहा है, ये तीसरे केस में ये जो क्रैक है और आपके पास आता जा रहा है सपोर्ट के, और देखिए जैसा मैंने इधर दिखाया वैसा ही आप इधर से दिखा सकते हैं, सिमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये तीसरे केस में मैं दिखा रहा हूं कि अब ए वैल्यू और क्लोज आ रही है, किसके, सपोर्ट के, ए वैल्यू और क्लोज हो रही है, ए पहले ज्यादा था फिर कम हुआ और फिर और कम हो गया, और ये सपोर्ट की तरफ जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, तो यहां पे क्या है देखिए कि अब थर्ड केस में ए इज लेस देन 17 सेंटीमीटर
फॉर टाइप 1 के लिए ऐसा हो गया, एंड टाइप 2 के लिए, फॉर टाइप 2 दो टाइप के स्पेसिमेन है, ए इज लेस देन 11 सेंटीमीटर। अगर ऐसा हो गया कि ए 17 से भी कम हो गया, यहाँ पे ए ये 17 की बाउंड्री उससे भी कम हो गया, या फिर यहाँ पे अगर हम लोग टाइप 2 में देखें तो अगर वो 11 यहाँ पे 11 था, 11 से भी कम हो गया, तो इस केस में क्या करेंगे कि अब आपका जो क्रैक है वो थ्योरी से तो बहुत दूर चला जा चुका है, क्योंकि थ्योरी थी कि वो मिडिल 1/3 में ही रहेगा। थ्योरी यही होती है कि जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो वहीं रहेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो यहाँ ही है, तो थ्योरी तो यही है कि वो यहीं रहेगा। तो जब थ्योरी यही है तो अगर ये इससे बहुत दूर चला जा रहा है, मतलब हमारी जो एरर है, देखिए ये सब जो दूर जा रहा है उसके पीछे एक ही लॉजिक है, वो एरर है। तो अगर वो बहुत दूर जा रहा है इसका मतलब जो एरर है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो इन दिस केस टेस्ट इज डिस्कार्डेड। अगर ऐसा आपको मिलता है, ऐसा रिजल्ट मिलता है कि आप क्रैक कर रहे हैं तो वो क्रैक बहुत बाहर जा रहा है, तो आप टेस्ट को डिस्कार्ड कर देंगे एंड यू विल रिपीट द टेस्ट। फिर से आप टेस्ट को फिर से परफॉर्म करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। देन इन दैट केस यू हैव टू रिपीट द टेस्ट। सो दिस इज द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ विच वी हैव डिस्कस्ड। इसमें हम लोग फ्लेक्सर डेवलप कर रहे हैं, और फ्लेक्सर डेवलप करने के बाद उस फ्लेक्सर की वजह से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस कर रहे हैं, और उस टेंसाइल स्ट्रेस को हम यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज PL/BD² केस 1 में। केस 2 में 3PA/BD², जब वो आपका क्रैक बेंडिंग जोन से थोड़ा सा, जो प्योर बेंडिंग जोन है उससे बाहर चला जाता है, बट बहुत बाहर नहीं जाता है, तो उसको हम लोग सेकंड केस बना रहे हैं। और जब बहुत बाहर चला जाता है तो उसको हम थर्ड केस बना रहे हैं, और उसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। थर्ड केस में हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, थर्ड केस का जो है डेटा हम उसको कंसिडर नहीं करते। सो दिस इज फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये इस टाइप से हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, दैट इज फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब इसी में दूसरा टेस्ट जो होता है, दैट इज दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ही है, दैट इज स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। पिछला टेस्ट जो है आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो पॉज करेंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इसको पूरा नोट डाउन कर लेंगे, कोई डाउट मत रखिएगा, और आप इसको अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या होगा, अब इसका नाम ही है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, तो इसको समझते हैं, देखिए होता क्या है। अब इसमें अगर हम लोग एपरेटस की बात करें, इसको हम लोग ब्राजीलियन टेस्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राजीलियन टेस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राजीलियन टेस्ट। और इसमें एपरेटस जो होता है हमारा, एपरेटस जो होता है, तो इस पे जो हम लोग मोल्ड यूज करते हैं, मोल्ड जो यूज करेंगे, तो दैट विल बी सिलिंड्रिकल मोल्ड। सिलिंड्रिकल मोल्ड यूज होगा, एंड साइज होगी 15 सेंटीमीटर डाया एंड 30 सेंटीमीटर हाइट। तो आप कहेंगे सर ये तो सेम मोल्ड है जो हमने यूज किया था कहां पे, कंप्रेशन टेस्टिंग के लिए। यस, इट इज द सेम मोल्ड विच इज यूज्ड फॉर कंप्रेशन टेस्टिंग ऑल्सो। सो दिस इज द सेम मोल्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर कंप्रेशन टेस्टिंग ऑल्सो। तो ये सेम ही मोल्ड है जो कंप्रेशन टेस्टिंग के लिए भी यूज हुआ है, और सेम ही उसी टाइप का मोल्ड हम यूज कर रहे हैं यहां पे भी। इसके बाद लोडिंग के लिए, फॉर लोडिंग CTM और UTM, फॉर लोडिंग CTM और UTM। तो आप कहेंगे सर ये तो मशीन भी वही है जिससे लोडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंप्रेशन लोड ही लगाते हैं, तो यहाँ पे मशीन जो होती है दैट इज CTM या UTM, और जो लोडिंग होती है दैट इज ऑल्सो सिमिलर, दैट इज, और जो आपका स्पेसिमेन है वो भी सिमिलर है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी नया नहीं करना है, वही इंस्ट्रूमेंट है, वही मोल्ड है, आपका काम चल जाएगा, बस वे बदल जाएगा, लोड लगाने का तरीका बदल जाएगा, वो आप समझना, ठीक है। तो इट इज इजीएस्ट वन ना, कि सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन से आप कंप्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और उसी टाइप के स्पेसिमेन से हम टेंसाइल टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो इट इज द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, इट इज वन ऑफ द एडवांटेज। आप यहां लिख सकते हैं स्टार बना के कि द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज, इसी में द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इट्स सिंप्लिसिटी। पहली बात तो ये सिंपल है। पिछले केस में आपने देखा कि कितने सारी कॉम्प्लेक्स चीजें थी, तो द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इट्स सिंप्लिसिटी, एंड द सेम मोल्ड एंड टेस्टिंग मशीन can be used which was used for compression testing machine, compressive strength, ठीक है। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज हुआ था भाई, सेम यूज हो सकता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सेम मशीन हम यूज कर रहे हैं, सेम सारी चीजें यूज कर रहे हैं, सिंपल टेस्ट भी होता है, तो ये इसका एडवांटेज होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है।
व्हाट इज द प्रोसीजर हियर? प्रोसीजर क्या है? देखिए प्रोसीजर में हम लोग अब ये जो सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर है, तो जब हम लोग इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे थे तो इस सिलेंडर को ऐसे रखे हुए थे, याद करिएगा आप, सिलेंडर को हम लोग ऐसे रखे हुए थे और इस पे इस तरह से लोडिंग लगाते थे, लाइक दिस, इस तरह से हम लोग इसके ऊपर लोडिंग लगाते थे। ये थी हमारी, ये जब लोडिंग हम लगाते थे तो ये थी हमारी कंप्रेशन टेस्टिंग, ये कंप्रेशन टेस्टिंग थी। अब हम लोग जब लोडिंग लगाएंगे इसी सिलेंडर पे, तो अब लोडिंग हम लोग इसको इस तरह से लगाएंगे। अब ये सिलेंडर कुछ इस तरह से रखा रहेगा और इसके ऊपर इस तरह से लोडिंग लेंथ के अलॉन्ग पूरे पे हम लोग इस तरह से लोडिंग लगाएंगे। और अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन में कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो लेंथ हो गई, दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ, और यहां पे अब आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा और क्रॉस सेक्शन विल बी लाइक दिस, क्रॉस सेक्शन विल बी लाइक दिस। क्रॉस सेक्शन क्या होगा? देखिए दिस इज द क्रॉस सेक्शन, द क्रॉस सेक्शन विल बी लाइक दिस। और यहां पे क्रॉस सेक्शन में क्या होगा? देखिए इस तरह से लोडिंग लगेगी, दिस इज द लोडिंग, दिस इज द लोडिंग, और यहां पे इस तरह से ये कॉन्टेक्ट एरिया होगा और ये कॉन्टेक्ट एरिया होगा। सो दिस इज द कॉन्टेक्ट एरिया, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन, ये लोडिंग है और यहां पे ये कॉन्टेक्ट एरिया होगा, दिस इज द कॉन्टेक्ट एरिया। इस तरह से यहां पे हम लोग लोडिंग लगाते हैं। जब हम इस तरह से लोडिंग लगाते हैं, दिस इज द डायमीटर, दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन, ये आपका डायमीटर है, ये लेंथ है। इस तरह की अब हम लोग लोडिंग लगाते हैं। तो देखिए जब इस तरह की हम लोग लोडिंग लगाते हैं तो होता क्या है, ध्यान से समझिएगा होता क्या है। जब हमने लोडिंग का पैटर्न बदल दिया तो इससे होगा क्या? होता ये है कि यहां पे हमने लगाया तो कंप्रेशन लोडिंग ही है, आप देख सकते हैं कि लगाया तो कंप्रेशन लोडिंग ही है, लेकिन इस कंप्रेशन लोडिंग की वजह से आपको याद होगा मैंने बोला कि यहां पे कांटेक्ट एरिया कम है, यहां पे आप देख सकते हैं कांटेक्ट एरिया कम है, और कांटेक्ट एरिया कम होने की वजह से यहां पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा। ये पॉइजन्स रेशियो आप पढ़ेंगे, पॉइजन्स इफेक्ट पढ़ेंगे कि जब भी आप किसी चीज को जैसे ऐसे कंप्रेस करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में फैलता है। आपने इधर कंप्रेस किया एक्स वाई, अगर आप एक्स डायरेक्शन में कंप्रेस करें तो वाई में फैलेगा, वो एक्स में आपने कंप्रेस किया वाई में फैलेगा। तो यहां पे भी यही होगा, अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन हमारी वाई है तो वाई में हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वो एक्स में फैलने की कोशिश करेगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में कंप्रेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहां पे कंप्रेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पे टेंसाइल लोडिंग इंट्रोड्यूस होगी, यहां पे खुद से ही टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा। और इस टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होने की वजह से एक्स डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होने की वजह से जब आप ये लोडिंग बढ़ाते जाएंगे कंप्रेशन लोडिंग, तो एक टाइम आएगा जब ये क्रैक हो जाएगा, तो इस टाइप की पिक्चर आप देखने को मिलेगी आपको। जैसे देखिए यहां पे आपको ये पिक्चर देखने को मिल रही है, देखिए इसको आप देख सकते हैं। ये केस आप देखिए यहां पे भी यही हो रहा है। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये आपका जो लोडिंग लगा तो कंप्रेशन लोडिंग ही लगा। कंप्रेशन लोडिंग लगाने के बाद आप देख सकते हैं, कंप्रेशन लोडिंग लगाने के बाद जब ये लोड लगाते गए सीटीएम में, तो ये यहां से स्प्लिट हो गया है, ये स्प्लिट हो गया, ये टूट गया यहां से। तो सेम सिचुएशन यहां आती है, ये कंक्रीट आपका इस तरह से स्प्लिट हो जाता है। जब कंक्रीट इस तरह से स्प्लिट होता है तो इसको स्प्लिट होने के लिए कितना स्ट्रेस यहां जनरेट हुआ, यहां पे जो कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हियर दिस सिग्मा टी, और इसका फॉर्मूला होता है 2p अपॉन पाई एल डी। दिस इज द फॉर्मूला, दिस सिग्मा टी इज 2p अपॉन पाई एल डी। p इज द लोडिंग, जो हमने लोडिंग लगाया वो p है। l क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ सिलेंडर, l इज लेंथ ऑफ सिलेंडर, l इज लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का लेंथ है। और what is d here, d is the diameter of the cylinder, तो यहां पे ये आपको 2p अपॉन पाई एल डी, L is the length of cylinder and D is the diameter of the cylinder, ये यहाँ पे आपको मिलता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्प्लिट टेंसाइल, और इस सिग्मा टी को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, हम इसी को कहते हैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये होती है आपकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इन दिस मैनर वी कैन कैलकुलेट द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखिए जो ये स्ट्रेस इंड्यूस होता है, इसका एक डायग्राम अगर हम लोग देखें कि किस टाइप का स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होता है, किस टाइप का स्ट्रेस इंड्यूस होता है, तो स्ट्रेस में आपको दिखेगा, हम लोग एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस की बात करें, देखिए दो डायरेक्शन है स्ट्रेस की, एक्स और वाई। हम लोग वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा, दैट विल बी प्योर कंप्रेसिव,
जो y डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा दैट विल बी प्योर कंप्रेसिव, बट जो x डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी लाइक दिस। अगर हम लोग उसको ध्यान से समझें, सो द स्ट्रेस इन x डायरेक्शन, जो x डायरेक्शन उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है, तो आपको पता है वो कंप्रेसिव होगा कॉर्नर पे, लेकिन जैसे ही वो सेंट्रल पोर्शन में आएगा वो पूरी तरह टेंसाइल हो जाएगा और फिर से ये कंप्रेसिव थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो दिस इज द नेचर। अब आप अगर इसको देखें ध्यान से तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये प्लस होगा और ये यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि कंप्रेसिव को हम लोग माइनस से दिखाते हैं। सो दिस इज माइनस जो होता है, आपको पता है माइनस इज कंप्रेसिव, माइनस कंप्रेसिव है और प्लस क्या है, टेंसाइल है। तो इस तरह का स्ट्रेस यहाँ डेवलप होगा। तो आप देख सकते हैं ये एक्स डायरेक्शन में है, ये कौन से डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। इस तरह से आप एक्स डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। अब ये थोड़ा सा माइनस क्यों है, अगर आपने कंप्रेशन वाई डायरेक्शन में लगाया तो एक्स में तो पूरा टेंशन आना चाहिए, अगर आपने कंप्रेशन वाई में लगाया तो एक्स में पूरा टेंशन आना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा क्यों कंप्रेशन आ गया, ये रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है। याद करिएगा आप, यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट में क्या होगा कि रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट करने के लिए एक्स डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स आएगा, एक्स डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स आएगा जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे थोड़ा दूर ये माइनस होता है, बट फिर भी मेजर पोर्शन इसका क्या होता है, प्लस होता है। ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, जो मेजर पोर्शन प्लस है, दैट इज अराउंड 5/6d। सो यहाँ पे ये मेजर पोर्शन आपको जो मिलता है दैट इज पॉजिटिव ओनली, दैट इज टेंसाइल ओनली। और अगर आपको मेजर पोर्शन टेंसाइल मिल रहा है, मतलब जो आपका स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो टेंसाइल हो रहा है, और जो आप स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, हेंस आवर कैलकुलेशन इज मोर एक्यूरेट। यहां पे आपका कैलकुलेशन जो होता है दैट इज मोर एक्यूरेट एंड दैट इज मोर नियरर टू द करेक्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसकी जो हमें वैल्यू यहां पे मिलती है, अब हम सारी चीजें अगर नोट में लिखें इसके बाद, तो नोट में मैं क्या लिख सकता हूं कि नोट में अगर मैं लिखूं कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड यूजिंग split tensile strength method will be more accurate and closer to direct tensile strength because of tensile stress distribution is uniform, because of टेंसाइल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस इट इज यूनिफॉर्म, दैट्स व्हाई इट्स एक्यूरेसी इज मोर एंड इट इज मोर क्लोजर टू द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ वैल्यू। बट अब आप मुझे बताइए वैल्यू ज्यादा किसकी होगी, फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज्यादा होगी या फिर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज्यादा होगी। तो देखिए जिसमें एरर ज्यादा होती है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है, तो फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ में एरर ज्यादा है इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बट वो एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट इज स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अगर हम लोग लिखें ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड using different methods, तो आपको क्या मिलेगा, फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर देन स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये इससे ज्यादा होगी। और सबसे कम कौन होगी, जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, दैट इज द एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो सबसे कम होगी, दैट इज डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द टेस्ट स्ट्रेंथ वैल्यूज। ठीक है, तो ये कितनी होती है अराउंड, जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये कितनी होती है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है अराउंड, दैट विल बी 60 to 80% ऑफ करस्पॉन्डिंग फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये इसकी लगभग 60 to 80% होती है। एक इंपॉर्टेंट बात और, जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो आपको पता है कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ मैं यहीं लिख दे रहा हूं, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हमें सबको पता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट
कंक्रीट ओवरऑल किसी भी मेथड से निकालें आप, दैट विल बी अराउंड 10 to 15% ऑफ corresponding compressive strength. That is 10 to 15% of corresponding compressive strength. अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे आप सबको पता है क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज इन ग्रेनुलर मटेरियल when loading is applied, मैंने बताया था आपको ये मोटार समझाते समय कि ग्रेनुलर मटेरियल है, when loading is applied due to the tensile loading, the voids और cracks start becoming more और स्टार्ट होते जाते हैं, ये क्रैक्स बढ़ते जाते हैं, और इसकी वजह से जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया स्टार्ट रिड्यूसिंग, एंड इफ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया स्टार्ट रिड्यूसिंग, देन चांसेस ऑफ क्रैक्स इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, मोर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जनरेटेड, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो उसी लोड पे स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा. सो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ materials like concrete or mortar in tension that is having very low strength. So अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया. पहले हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, और उसके बाद हमने डिस्कस किया स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट. नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वन इज, अब हम लोग देखिए एक प्रैक्टिकल केस में आपको बताता हूं. नॉर्मली जो कॉन्क्रीटिंग होती है, ये समझने के लिए है आपके, नॉर्मली जब कॉन्क्रीटिंग होती है तो कॉन्क्रीटिंग होते समय जैसे मान लीजिए कोई स्लैब की कॉन्क्रीटिंग हो रही है, यानी स्लैब कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. तो जब स्लैब का कंस्ट्रक्शन होता है तो कायदे से रूल ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप कॉन्क्रीट मंगा रहे हैं, और कॉन्क्रीट आप ट्रांजिट मिक्सचर से मंगा रहे हैं, कहीं से प्लांट से कॉन्क्रीट आ रहा है, प्लांट में कॉन्क्रीट बन रहा होगा और वहां से कॉन्क्रीट आ रहा है. जब कंक्रीट आ रहा है आपका, और कंक्रीट जैसे ही आपके साइट पे आता है, कंक्रीट को यूज करने से पहले आप चेक करते हैं कि इसकी स्लम्प वैल्यू कितनी है. तो उस समय आप पहली बात तो स्लम्प चेक करते हैं, क्योंकि कहीं वर्केबिलिटी कम होगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, और वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, वाटर ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली ये फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग उसका स्लम्प वैल्यू टेस्ट करते हैं. जब स्लम्प वैल्यू टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसी कॉन्क्रीट का एक सैंपल लेके हम उससे कॉन्क्रीट के क्यूब बनाते हैं. कंक्रीट का एक सैंपल लेके उसी से हम लोग कंक्रीट के क्यूब बनाते हैं, और उन क्यूब्स को हम लोग रख देते हैं लैब में, और उससे 28 डेज बाद हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमें कंक्रीट जो हमने यूज किया उसकी स्ट्रेंथ पता चल सके. अब मान लीजिए कंक्रीटिंग चल रही है और आपने क्यूब बना लिए, और कंक्रीटिंग तो एक दिन में खत्म हो जाएगी, आपके जो क्यूब हैं वो रख दिए आपने. अब क्यूब को फिर आपने क्योरिंग किया, क्योरिंग करने के बाद उनकी टेस्टिंग किया. अब आप ये सब करते समय कोडल प्रोविजन है, आपको 28 दिन का समय चाहिए, 28 डेज इज रिक्वायर फॉर द कंप्लीट स्ट्रेंथ कैलकुलेशन. आप तभी उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेशन कर सकते हैं. 28 दिन बाद जब आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने गए, अब मान लीजिए आप M25 कंक्रीट डाल रहे थे, और आप M25 के बहुत सारे क्यूब्स कास्ट किए और उनकी टेस्टिंग करने गए जब आप 28 दिन बाद, तो आपको क्या पता चलता है कि 28 डेज बाद जब हमें रिजल्ट मिला, जब तक कि हमारी स्लैब कास्ट हो चुकी है, स्लैब प्रॉपर फंक्शनिंग है, स्लैब के ऊपर हमारा ऊपर का भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, उसके बाद जब आपको स्ट्रेंथ मिली क्यूब की, और वहां पता चला आपका क्यूब फेल हो गया. अब आपके क्यूब की स्ट्रेंथ उतनी आई ही नहीं जितनी आनी चाहिए थी. अब देखिए आपका क्यूब फेल हो गया, और क्यूब किस कंक्रीट का था, जो कंक्रीट पहले ही यूज हो चुका है, उस कंक्रीट के ऊपर स्लैब बन चुकी है, उसके ऊपर का भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, वो क्यूब अब आपका फेल हो गया. अब ये बहुत डिलेमा की सिचुएशन है, क्योंकि जो कंक्रीट ऑलरेडी यूज हो चुका है उसकी स्ट्रेंथ आपने बाद में कैलकुलेट करी, क्योंकि मजबूरी थी, उस समय स्ट्रेंथ आती नहीं, 28 दिन लगता है स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने में, और अब आपका क्यूब फेल हो गया. अब आपका क्यूब फेल हो गया, तो अब बताइए आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि जो स्लैब में हमारा कंक्रीट यूज हुआ है उसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर थी या नहीं थी, अब उसकी भी आपको पता नहीं है. तो अब आप, क्योंकि अब स्लैब तो कास्ट हो चुकी है, अब स्लैब में भी कहीं पता चले स्लैब में भी जो कंक्रीट यूज हुआ है वो भी फेल हो गया होगा, मतलब उसमें भी स्ट्रेंथ नहीं होगी, ये भी हो सकता है. तो आपके दिमाग में एक डाउट आ गया. अब ये डाउट क्लियर कैसे होगा कि ऐसा हो सकता है कि सिर्फ क्यूब फेल हुआ हो और कंक्रीट ठीक हो जो स्लैब में हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि कंक्रीट आपका जो क्यूब में है वो ठीक रहा हो, स्लैब में और उससे भी बुरा रहा हो. तो अब ये चीजें जब डाउट आती हैं तो इनको क्लियर कैसे करेंगे? तो इनको क्लियर करने के लिए अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि अब हम स्लैब की टेस्टिंग करें जाके. क्यूब की तो टेस्टिंग कर चुके, अब हम स्लैब की टेस्टिंग करें, और स्लैब की टेस्टिंग करेंगे तो स्लैब को तोड़ नहीं सकते, स्लैब पे लोड, एक्सेसिव लोड नहीं लगा सकते. तो अब हम लोग स्लैब के लिए क्या टेस्टिंग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. अब स्लैब को बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए हम लोगों को एक टेस्टिंग करनी पड़ेगी. So we have to perform some non-destructive test also to check the quality of concrete. तो अब हम लोग next discuss करेंगे non-destructive test. That is non-destructive
नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो अब हमें यह भी डिस्कस करना पड़ेगा व्हाट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज द टेस्टिंग इन विच स्पेसिमेन इज नॉट डिस्ट्रक्टेड, स्पेसिमेन इज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द टेस्टिंग। नॉर्मल केस में आपने अभी देखा, इनकी हालत देखी स्पेसिमेन की, स्पेसिमेन पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो गया है क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में देयर इज नो नीड टू डिस्ट्रक्ट द स्पेसिमेन। ठीक है, तो मैं पहले आपको कंपैरिजन दिखाता हूं, कंपैरिजन ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंड, इनको नॉन डिस्ट्रक्टिव शॉर्ट फॉर्म में एनडीटी कहते हैं। ये आप लोग कई जगहों पे पढ़ेंगे, आपका जो जीएस का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसमें भी ये है सिलेबस में। सो कंपैरिजन ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का कंपैरिजन करते हैं। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो देखिए, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो क्या हमें यहां पे मिलेगा, पहला देखिएगा। जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है मैं उनको लिखता हूं और इधर इसको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को लिखता हूं, या पहले डिस्ट्रक्टिव को चलो लिख लेता हूं, पहले डिस्ट्रक्टिव को लिखता हूं और फिर इधर एनडीटी लिख देता हूं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में पहला कि जो आपका टेस्टिंग होता है इसमें इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि इसमें आपको कम से कम 28 दिन चाहिए होते हैं। इट इज टाइम कंज्यूमिंग। यहां पे एनडीटी क्या है, इट इज क्विक, इट इज क्विक। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या है, इट इज हैविंग sophisticated means sophisticated procedure which required skill। ठीक है, तो इसका आपका एक प्रोसीजर है जो नॉर्मली एक स्किल्ड आदमी ही कर पाता है प्रॉपरली। ठीक है, ये स्किल की जरूरत होती है। इट इज कंपेरेटिवली इजी, इसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। इट इज कंपेरेटिवली इजी। ठीक है, इट इज कंपेरेटिवली इजी, इसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत आपको नहीं पड़ती। तो ये इजी है, क्विक है। ठीक है, इट इज परफॉर्म्ड ऑन सैंपल। देखिए, ये सैंपल लेके आते हैं कंक्रीट का और उसके ऊपर हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इट इज परफॉर्म्ड ऑन सैंपल, बट इट इज परफॉर्म्ड ऑन एक्चुअल स्ट्रक्चर। इट इज परफॉर्म्ड ऑन एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये कहां परफॉर्म होगा, इट इज परफॉर्म्ड ऑन एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये तो एक्चुअल स्ट्रक्चर पे परफॉर्म होता है। इट इज परफॉर्म्ड ऑन सैंपल बट इट इज परफॉर्म्ड ऑन एक्चुअल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली इट इज परफॉर्म्ड ऑन एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बना है उस पे जाके परफॉर्म होता है। नेक्स्ट, आफ्टर दिस टेस्ट specimen cannot be reused। इस टेस्टिंग के बाद आपका स्पेसिमेन दोबारा यूज करने लायक नहीं रह जाता, बिल्कुल। बट इसमें क्या होगा, इट डज नॉट अफेक्ट द स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन को अफेक्ट ही नहीं करता, अफेक्ट द स्पेसिमेन। ठीक है, एंड इट कैन बी रीयूज्ड, और वो रीयूज होता रहेगा, वो यूज होता रहेगा। सो इट कैन बी रीयूज्ड, सो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द स्पेसिमेन, और इसके बाद स्पेसिमेन रीयूज होता रहेगा। लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इट डायरेक्टली गिव्स द स्ट्रेंथ। ये इसमें एक अच्छाई होती है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में कि डायरेक्टली गिव्स द स्ट्रेंथ। क्यों डायरेक्टली स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि हम लोडिंग लगा रहे हैं तो हमें डायरेक्टली यहां पे स्ट्रेंथ मिलती है। बट इट गिव्स स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली। It gives strength indirectly using calibration और फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला या कैलिब्रेशन यूज करके इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ देता है, एंड विच इज लेस एक्यूरेट। ये सबसे बड़ी कमी है कि इस टेस्ट में जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है दैट इज लेस एक्यूरेट, और इसकी जो टेस्ट में होती है वो मोर एक्यूरेट। इसीलिए हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पहले करते हैं और उसके बाद हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो टेस्ट हैं उसमें पहला टेस्ट है, फर्स्ट वन इज, जो नॉन एनडीटीज हैं, एनडीटी में पहला है, फर्स्ट वन इज दैट इज रिबाउंड हैमर टेस्ट। ठीक है, इट इज एज पर IS 13311। ये IS कोड है आपका। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हैं, दो पार्ट्स होते हैं। तो इसमें पहला है रिबाउंड हैमर टेस्ट। अब रिबाउंड हैमर टेस्ट में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल समझ लीजिएगा। टेस्ट का प्रिंसिपल आपको समझना है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेस्ट। प्रिंसिपल इज कि व्हेन वी आर गोइंग टू
इम्पैक्ट ऑन द सरफेस, जब हम लोग किसी भी सरफेस पे इम्पैक्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग किसी भी सरफेस पे इम्पैक्ट करते हैं, सो ड्यू टू द नेचर ऑफ सरफेस विल गेट सम रिबाउंड। जैसे क्रिकेट की आप बात करें, सिंपल, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग या क्रिकेट देखते हैं आप लोग टीवी में, तो आप लोग कभी कभी सुनते हैं कि टुडे द पिच इज बाउंसी, आज बाउंसी पिच है, असीमित उछाल मिल रही है पिच में, ऐसा कुछ कमेंट्रेटर जो होते हैं वो बोलते हैं। तो पिच में बाउंस है पिच में, मतलब क्या होता है, बॉल जब टिप करती है, इंपैक्ट करती है पिच पे, उसके बाद वो बाउंस हो रही है। तो यहां पे रिबाउंड है, ये रिबाउंड है, पिच टिप करने के बाद बाउंस हो रही है, दैट इज रिबाउंड। और कभी कभी आप ये भी सुनते हैं कि पिच में आज उछाल नहीं है तो गेंदें नीचे रह जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, टिप करने के बाद गेंद उठ नहीं रही है, वो नीचे ही रह जा रही है। तो ये जो रीजन हो रहा है कि कभी आपको बाउंस मिल रहा है और कभी आपको बाउंस नहीं मिल रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पिच पे डिपेंड कर रहा है। और ये पिच की बेसिकली डेंसिटी और उसके हार्डनेस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस हार्डनेस एंड द डेंसिटी ऑफ द पिच। तो यही सेम चीज हम लोग, यही प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे। इंपैक्ट का मतलब हैमर से आप अटैक कर रहे हैं, हैमर उसके ऊपर इंपैक्ट कर रहे हैं, और जब आप हैमर से इंपैक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद टकराने के बाद हैमर कितनी तेजी से वापस आ रहा है, हैमर टकराने के बाद कितनी तेजी से वापस आ रहा है, ये होता है रिबाउंड। और आपका अगर मटेरियल, आपका सरफेस हार्ड है, बहुत हार्ड है और डेंस है, तो रिबाउंड ज्यादा होगा। और अगर आपका सरफेस हार्ड नहीं है, डेंस नहीं है, तो रिबाउंड नहीं होगा। जैसे आप कंक्रीट की, जो क्रिकेट की पिच बनती है, उसको बार बार रोलिंग करते हैं, आपने देखा होगा, ब्रेक टाइम जब होता है, टी ब्रेक होता है या ड्रिंक ब्रेक्स होते हैं, तो उसमें वो पिच पे रोलिंग करते हैं। रोलिंग क्यों करते हैं, बेसिकली उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि वो जितनी ज्यादा कॉम्पैक्टेड होगी उतना ही ज्यादा रिबाउंड उसमें अच्छा रहेगा। इसी तरह से अगर हम लोग बिना रोलिंग किए पिच पे अगर खेले तो उसमें क्या होती, बॉल पड़ने के बाद रिबाउंड ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें हार्डनेस नहीं है, उसमें डेंसिटी नहीं है। सो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो यहां पे प्रिंसिपल यही है कि व्हेन इम्पैक्ट इज डन ऑन एनी सरफेस, impact is done on any surface, the rebound depends on the surface hardness and the density. And using this principle, impact is done on concrete surface also. Impact is done on concrete surface also. If rebound is more, then it is assumed, or then it indicates concrete have better हार्डनेस एंड डेंसिटी, ठीक है। सो दिस इज द केस कि अगर ऐसा होता है तो हमें बेटर हार्डनेस और डेंसिटी मिलती है। एक्चुअली प्रोसीजर क्या होता है, यूजिंग रिबाउंड हैमर इंस्ट्रूमेंट, impact is done on the surface of concrete at any particular angle, and then reading of rebound is noted down. Later on, this reading is compared with calibration chart given with the instrument.
विद द इंस्ट्रूमेंट। तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक कैलिब्रेशन चार्ट होता है, और जब आप देखेंगे कैलिब्रेशन चार्ट, तो कैलिब्रेशन चार्ट नॉर्मली ऐसा कुछ आपको मिलेगा कि जैसे ये स्ट्रेंथ है और ये रिबाउंड रीडिंग है, तो रिबाउंड रीडिंग होगी, और ये फॉर एग्जांपल 90 डिग्री के लिए, एट 90 डिग्री टू सरफेस, तो सरफेस से आप 90 डिग्री पे इंपैक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे इंपैक्ट कर रहे हैं, और लाइक दिस आपको ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है। तो आपको रिबाउंड रीडिंग पता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या रीड कर सकते हैं, यहां से स्ट्रेंथ रीड कर सकते हैं। सो इनडायरेक्टली विल गेट द स्ट्रेंथ, इनडायरेक्टली विल गेट द स्ट्रेंथ, विल गेट द स्ट्रेंथ, ठीक है, इनडायरेक्टली हमें यहां से स्ट्रेंथ मिलेगी। नोट अब आपको यह लिखना है कि हियर द स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड may vary more than 25 या up to 25%, may vary up to 25% from actual strength of concrete। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं, 25% तक का वेरिएशन आपको यहां पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। दिस इज रिबाउंड हैमर। अब अगर आप इसका एक डायग्राम देख लें, डायग्राम बहुत क्लियर है। दिस इज द रिबाउंड हैमर विच इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द रिबाउंड हैमर। अब आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये इसका प्लंजर होता है जो कंक्रीट, ये यहाँ पे कंक्रीट का सरफेस होगा, हियर इट इज द कंक्रीट सरफेस, यहाँ पे कंक्रीट सरफेस है, और हम लोग एग्जैक्टली 90 डिग्री पे इसको मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लंजर है जो जाके टकराता है कंक्रीट से, यहाँ पे ये स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, और ये इंपैक्ट सरफेस है, ये जो जाके यहाँ पे टकरा रहा है, प्लंजर का ये नेक है, ये हैमर है बेसिकली, ये प्लंजर ये हैमर से कनेक्टेड है, मास यहाँ पे कनेक्टेड है, ये मास है, इसको रिबाउंड मास भी बोलते हैं हम लोग, रिबाउंड मास भी बोलते हैं। तो ये रिबाउंड मास जो है, ये रिबाउंड मास यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ पे एक होल्डिंग बटन होता है, एंड प्लेट होल्डिंग बटन यहाँ पे रहता है, और यहाँ से हम लोग ये जब बटन प्रेस करते हैं, ये रिलीज बटन है एक तरह से, ये रिलीज बटन है। तो ये रिलीज बटन जब हम लोग प्रेस करते हैं तो ये यहां से रिलीज होता है और ये जाके टकराता है कंक्रीट से, और टकराने के बाद ये वापस आता है, ये रिबाउंड होता है, टकराने के बाद ये वापस होता है, और जब ये वापस होता है तो यहाँ पे नंबर इंडिकेटर होता है, वो बताता है कि ये कितना वापस हुआ, ये यहाँ पे कितना वापस हुआ। तो यहाँ पे हमें ये रीडिंग मिल जाती है, यहां से हमें मिलती है रिबाउंड रीडिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से यहां से हमें रिबाउंड रीडिंग मिल जाती है। तो जब हमें ये रिबाउंड रीडिंग मिलती है तो यही रिबाउंड रीडिंग हमने यहाँ पे यूज किया है स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में, सिंपल सा टेस्ट है। तो इस तरह से ये रिबाउंड हैमर इंस्ट्रूमेंट होता है, किस तरह से हम इसको कंक्रीट के सरफेस पे इंपैक्ट करते हैं, जिससे ये रिबाउंड होता है, ये इंपैक्ट करने के बाद ये वापस जाता है, और ये कितना वापस जाता है ये नंबर इंडिकेटर यहाँ है, इससे हमें ये रिबाउंड रीडिंग मिल जाती है, और उस रिबाउंड रीडिंग से हम स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं। दिस इज सिंपल टेस्ट। हाँ, बस इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है, इसी वजह से हम लोग इसको बहुत बार बहुत जगहों पे इसको रिपीट करते हैं, बहुत सारे इसमें हम लोग रीडिंग लेते हैं, जिससे कि एवरेज लेने पे थोड़ी एक्यूरेसी अच्छी हमें मिल जाए। हम लोग अगर इसी को अलग एंगल पे इस तरह से प्लेस करेंगे तो रिबाउंड रीडिंग अलग आएगी, इस तरह से एंगल पे प्लेस करेंगे तो रिबाउंड रीडिंग अलग आएगी। सो रिबाउंड रीडिंग डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ एप्लीकेशन, वो इस पे भी डिपेंड करता है। तो कैलिब्रेशन चार्ट हम लोग जब देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एप्लीकेशन को भी ध्यान में रखते हुए कैलिब्रेशन चार्ट हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज रिबाउंड हैमर टेस्ट, ठीक है। अब एनडीटी में एक और टेस्ट है जो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है, एंड दैट इज यूपीवी टेस्ट, विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो टुडे आई एम क्लोजिंग हियर, ओके, आई एम क्लोजिंग दिस लेक्चर, 9th लेक्चर हियर, ओके। आपको जो भी डाउट है प्लीज, आपको मैंने मेल आईडी और नंबर दे दिया है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, बहुत सारी चीजें आपको वहां से कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्लियर भी होंगी। प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिएगा आप, गेट का और ईएससी का, और इसके अलावा आप नोट्स को बार बार, जो भी चीज़ें आपको क्लास में और स्क्रीन पे बताई जा रही हैं, आप उसी को बार बार रिवाइज करें, बार बार पढ़ें, और वॉट एवर आई एम टीचिंग हियर दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर ईएससी एग्जाम, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको ईएससी एग्जाम के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।